Very good afternoon to all of you. My name is Alok Pandey. I'm a CEO of Incubation Center at IIT Delhi, Sonipat campus. It's a research and innovation park created by IIT Delhi in Sonipat. It's a second extension center of IIT Delhi. So before going to the presentations, I would like to tell you all of you about this Atal Incubation Center IIT Delhi. So AICIT Delhi's Incubation Center is the trademark and brand name of Atal Incubation Center established at IIT Delhi. So we are focusing here. It's a support. It's created under the mission of Atal Innovation Mission, supported by NITI Aayog, established in 2019, and located at iTech Technopark, IIT Delhi. And currently we are supported 24 plus deep tech startup, and most of other than 24 pipeline. So we will onboard all the startups. The tutor is we are focusing only the deep tech startup, on the generic based startups. We can support and mentor the generic based startups, app-based startup or service sector startups, but we are more focusing on product development, and we are basically providing the sustainable model of the startups in a longer vision, long term. Deep tech startup will survive in a better way in terms of generic startups. So as far as sectors is concerned, we are supporting emerging technologies here for development of innovation in businesses. So we are primarily focusing on health tech. Then we are focusing on agri-tech, and we are focusing on technical textile in manufacturing. Sonipat and Panipat is more of the industrial sector of technical textile, clean tech, sport tech, food tech, robotics, AI, NM. Apart from that, we are basically sector agnostic, but these 6 to 7 sectors we are focusing on the primary basis. Then after, we will support any type of sectors to grow the startups and mentor the startups. So I would like to come on to the topic directly. So we have to, before going to the prototyping process and process development and development of the product, it's a very crucial stage. So audience need to understand before a typical journey of MSMEs first, how they look like. Because as far as my experience is concerned, there is two parts. The first part is the success of the startups, where we have launched the success story of the startup. We have learned lot of things with the help of success of the startups. But largely, if we talk about the failure of the startup, pivot of the startups, we have learned a lot of from the success of startup, rather than we have learned from the failure of the startup. Why startups are failing the market, why they are not on the growth stage, go to market strategies, and they are basically not able to deploy their product in the market, or they are not able to make product well. Rather, they started a good starting. They have taken a good problem statement. They have proposed a good prospect solutions over there. But in the last, we find that lot of startups die out before going to the market, or if they are going to the market, but product finally they cannot able to make product fit for the market. They find out the pain point of the sectoral problems, or you can say any problem that are related from the society, or something like related to the sectors also, from the agri-tech sector, defense sectors, clean tech sector, health sector, whatever. So students or the audience, whosoever is going to take the interest in the startup journey, they firstly find out the problems from the market, key on which problem they want to give the solutions first. So the audience is important on the first part. First, if they find out the correct problem in the market, definitely it's a natural process, whether you in the market, I in the market, and other person in the market, whenever we see the problems, a unique solutions or unique solutions automatically come into the mind. It's a baby child of our mind that we can provide this unique solutions. But in everyone's mind, when they see the problem, they can generate some thoughts. We have to solve those problems like this. We have to solve problem like this. But idea generation is a very simple process. To implement those ideas into the product,
That is a typical process. आपके पास पेन है? हेलो, दे दीजिए, ब्लू. हेलो, Amar Chandra ji, kindly mute yourself, please. वन का दे दीजिए. Amar Chandra ji, kindly mute. So audience, please mute your mic so that the flow cannot be break because it's a very specific time, 40 to 5. Pandey sahab, you are also muted now. Pandey ji, Alok ji, you are muted. So now voice is audible. Yes, sir. So whenever idea come into our mind, we have to try to put that idea convert into the Alok sir, sorry interjecting here. Thoda sa Hindi also our audience wants to hear. A mix of Hindi and English. Okay, sir? Okay. Sure. So जब भी डेफिनेटली कोई आइडिया किसी के माइंड में आता है तो डेफिनेटली वी हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट दोज आइडिया इनटू द प्रोडक्ट इफ वी टॉक अबाउट द फाउंडर्स और को-फाउंडर्स एज वेल. सो सबसे पहले अगर आइडिया टू प्रोडक्ट की अगर हम जर्नी देखें, सो आइडिया से प्रोडक्ट तक जाने के लिए हमारी जर्नी सबसे पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे आती है कि जब भी आपको चाहे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में उसको डिस्कस करना हो कि मेरे माइंड में कुछ आइडिया आया है, वी हैव टू सी द सम प्रॉब्लम्स, वी हैव टू कैटर those problems for the society. तो we have to convince them कि हाँ ये मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है. आप केवल मार्केट में जाके, फैमिली फ्रेंड्स में जाके, अपने फ्रेंड सर्किल में जाके या कॉलेजेस में टीचर्स के साथ जाके आप केवल उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये मैंने प्रॉब्लम को देखा है, ये मैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटिक सॉल्यूशंस में सोच रहा हूं और वी हैव टू स्टार्ट अवर स्टार्टअप्स. सो वी हैव टू गो फॉर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फर्स्ट. वंस जब आप उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर भी आता है और आप जहां पे उसे शोकेस करना चाहते हो वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उन्हें दिखा भी सकते हो. देन आपकी फर्दर जर्नी वहां से स्टार्ट होती है. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. द अदर स्टेप इज टेस्ट लॉन्च. जब भी हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या बेसिक आइडिया को एक प्रोटोटाइप में डेवलप कर देते हैं तो वो प्रोटोटाइप हमारा फिर टेस्ट मार्केट में लॉन्च के लिए जाता है, जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा वेदर जो हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया है या जो सॉल्यूशंस हमने किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हमने सोचा था वो हमारा टेस्ट लॉन्च में सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है. अगर वो सक्सेस और फेलियर की तरफ जाता है तो ये एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है. वो मैं फर्दर स्लाइड्स पे आई हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि वो कॉन्सेप्ट हमारा विनिंग कॉन्सेप्ट की तरफ है या नहीं है. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द विनिंग कॉन्सेप्ट इन द फर्दर स्लाइड्स कि वो विनिंग कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है. अगर वो विनिंग कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं कि दैट इज आवर विनिंग कॉन्सेप्ट और ये विनिंग कॉन्सेप्ट एक परफेक्ट है, देन वी हैव टू गो फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस. तो बिफोर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस वी हैव टू इन्फ्यूज ओवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू टेस्ट लॉन्च. To make a prototype or proof of concept is very specific और वो हमारे most of the features को कैटर कर रहा हो और हमारी जेनिक ऑडियंस को एक्सप्रेस कर रहा हो. हमें किसी भी तरह जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जब भी एक स्टार्टअप्स एक आइडियोजेनिक स्टेज से आगे मूव करता है तो फाउंडर्स में लॉट ऑफ एनर्जी होती है और वो करंटली स्टेज पे जाके एकदम यू कैन से दैट वो मनी माइंडेड थिंक आती है कि हमें एकदम वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है. वी हैव टू कन्वर्ट दैट मॉडल इन अ प्रॉफिटेबल मॉडल. तो स्टार्टअप जर्नी कुछ इस तरह नहीं है. ये सपने की तरह हो सकती है कि हाँ किसी ने लॉन्च किया, उससे पैसा मिल रहा है मार्केट में, वो पैसे को बना रहा है मार्केट से, लेकिन जल्दबाजी में एक सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि डिपेंड करता है कि आपने अर्ली स्टेज पे जो प्रॉब्लम से लेके आइडिया से लेके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक है, ये जो बेसिकली फर्स्ट है कॉलम, इस पे आप लोगों ने कितना एफर्ट डाला है, कितना इसको आपने सीरियसली लिया है अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को बनाने में और कहां पे आपने जल्दबाजी नहीं दिखाई है. अगर इन किसी पॉइंट्स पे भी आप अगर जल्दबाजी दिखाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी फर्दर जर्नी है, चाहे वो डेवलपमेंट की है और ग्रोथ स्टेज की है, आपको वहां पे झटका लगेगा. आप वहां पे बहुत बड़ा एक झटका खा सकते हैं कि हमने इनिशियल स्टेज पे अपनी R&D कंप्लीट क्यों नहीं करी और बहुत तेजी से भागने के चक्कर में हम अपना रिमेनिंग जर्नी को भूल आए. तो जो सेकंड स्टेज है वो टेस्ट लॉन्च है. अगर टेस्ट लॉन्च में आपको जो फीडबैक्स आते हैं वो गलत आते हैं, खराब आते हैं, तो देन आप उन फीडबैक्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने प्रोटोटाइप को अपने डेवलपमेंट के लिए और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं.
देन जब आपका प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस, यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस फिनिश होता है, व्हेन यू सेटिस्फाई, योर ऑडियंस इज सेटिस्फाइड, और आपको एक अच्छा फीडबैक मार्केट से मिला है, देन यू हैव टू गो फॉर द लॉन्चिंग द विनिंग आइडिया, रेस कैपिटल, एक्सपेंड कर सकते हैं, एंटर न्यू मार्केट्स इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं. दैट इज द लास्ट पार्ट. बट इन दिस presentation we are more focusing on one of the half part of the first half part, that is idea, proof of concept and test launch. एक टेस्ट लॉन्च तक हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आइडियनेशन स्टेज को, और देन वहां पे कितना टाइम हमें इन्फ्यूज करना चाहिए कि हम उसे फिर ग्रोथ और एक्सपेंड मार्केट में मार्केट फिट बना सकें, और उसके बाद ही हम मार्केट में कदम रखें, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर या एक्सपोज ना करें इन द मार्केट. सो दैट इज अ टिपिकल स्टार्टअप एमएसएमई जर्नी लुक्स लाइक, कि वो इस तरह से एक चलता है जो आइडियनेशन स्टेज से स्टार्ट होते हैं. नाउ I would like to take 3 to 4 minutes of product management life cycle. उससे भी आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ तक कितना क्रिएटिव और इनोवेटिवली हमें कहाँ पे अपना टाइम सबसे ज्यादा इन्फ्यूज करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी प्रोडक्ट. सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दैट इज द इनोवेशंस, कि हमने कोई जनरेट एंड प्रायोरिटाइज आइडिया, हमने कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मार्केट से लिया और उस पे हमारे नंबर ऑफ थॉट्स हमारे डेवलप हुए, तो हमने उसको प्रायोरिटाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कि वो उसे प्रायोरिटाइज करें कि किस आइडिया को हमें इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाना है, मतलब किस आइडिया पे हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे, डिस्कवरी करें और देन क्रिएट अ इनिशियल प्रोपोजिशंस. हम इनिशियल प्रोपोजिशंस बनाए कि हम इस इनोवेशंस के तहत आगे बढ़ेंगे. दैट इज द अनदर स्टेप इज एनालिसिस. That is the most important analysis, the validate market need, justify investment, right requirements. So क्योंकि जब भी हम किसी आइडिया पे काम करते हैं, if we talk about the lean canvas model or business canvas model, that is two part where any students can start from the problem side or from the customer side. So I would also like suggest to all the students कि you have to start the customer segment sides. आप अपना टारगेट कस्टमर सबसे पहले फिट करो कि किस टारगेट कस्टमर्स को आप एड्रेस करना चाह रहे हो फॉर द स्टार्टअप. जब आप टारगेट कस्टमर आप सेट करते हो, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेदर दे आर बिलोंग टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वेदर दे आर बिलोंग टू सम सर्विस सेक्टर बैकग्राउंड, उसके घर में कैसा कल्चर है, उसके फादर सर्विस सेक्टर से है, कहाँ से है, या डेफिनेटली अगर वो फादर उनके सर्विस सेक्टर से नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड है उस सर्विस सेक्टर से नहीं है, तो डेफिनेट उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द सेल्फ इंटरेस्ट, कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस सेक्टर में है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी का कोई एग्रीकल्चर फार्मिंग बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली उसे एज मिलेगी कि उसे फार्मिंग सेक्टर एटलीस्ट पता होगा कि फार्मिंग में क्या क्या परेशानियां हैं और कितना बड़ा लार्ज मार्केट साइज है. तो अगर वो उस पूरे टारगेट ऑडियंस को सेट करता है, तो वहां से वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकता है. कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी ने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है और उसने पूरा फार्मिंग सेक्टर को टारगेट कर रखा है, तो वहां से वो यूनिक प्रॉब्लम्स देख सकता है कि जो फार्मर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो वहां से वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है. देन वो उस पर एनालिसिस पूरी करके कि मार्केट कैसे वैलिडेट होगा, मैं क्या ड्रोन से उनकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं स्मार्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के थ्रू उनकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या उनके जो पराली के इश्यूज हैं, जो पॉल्यूशन के इश्यूज हैं, उनको मैं दूर कर सकता हूँ, या उनकी जो एग्रीकल्चर मशीन्स आ रही हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं, जो कि फार्मिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा स्मूथ कर रही हैं, फार्मर्स का वर्कलोड कम कर रही हैं, उसे स्मार्ट वर्किंग करने में हेल्प कर रही हैं, उनकी जो फसल्स की डिसीजेज हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प कर रही हैं, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही हैं, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सी इन योर इंटरेस्ट एरिया. वहां से आपकी एनालिसिस स्टार्ट होगी कि मुझे किस टाइप के सॉल्यूशंस उन्हें देने हैं और किन किन चैलेंजेस से वो हैं. यहाँ पे दो पार्ट हो सकते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी वो सॉल्यूशंस अवेलेबल हो बट वो वर्केबल ना हो, ऑलरेडी वो उतने प्रॉपर सॉल्यूशंस ना जा रहे हो, तो ये भी आपकी एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए. और सेकंड होना चाहिए कि अगर जो वर्केबल सॉल्यूशंस मार्केट में हैं और वो एड्रेसेबल नहीं है, तो आप उनको कैसे एड्रेसेबल बना सकते हो, क्या आपकी यूएसपीज होंगी, जो मार्केट में सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो यूएसपी से मैच नहीं कर रहे हैं. देन आपकी जब R&D पूरी होगी, देन यू हैव टू गो फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस. बिफोर गोइंग टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, द इनोवेशन, द एनालिसिस पार्ट जो आपका है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक, वो आपका कंप्लीट पूरा होना चाहिए. चाहे आप उसको अपनी पूरी स्टार्टअप जर्नी का आधे से ज्यादा समय आप इनिशियल लेवल पे दे दो,
60 to 67% बिफोर डेवलपमेंट आप उसे दे दो, वो ज्यादा बेटर है। एंड ऑफ द 30% पे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप रिवर्स करते हैं इस काम को, केवल वो अपनी पूरी स्टार्टअप जर्नी का 25 से 30% वो स्टार्टिंग बेसिस पे देते हैं। एक क्विकली कोई भी एक सेक्टर पिक किया, एक कोई भी रैंडम एक प्रॉब्लम चूज कर लिया और उस पर कोई भी एक प्रोबेबल सॉल्यूशंस लिया, उसको छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया और डायरेक्टली कूद गए उसे डेवलपमेंट में, गो टू मार्केट जाने में, मार्केट फिट बनाने में, वीसीज के पास जाने पे, एंजल डिफरेंट ग्रांट्स उठाने में, और अपने मार्केट अपने स्टार्टअप्स को एक्सपेंड करने में। तो पता होता है कि वो सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले टाइम में आता है और पूरी स्टार्टअप जर्नी पे आप इम्पैक्ट मारता है। क्योंकि जब एक बार आप एक हाफ से ज्यादा अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो, मार्केट में आप गो टू मार्केट हो जाते हो, तो आपके पास फिर उतना समय नहीं होता उन चीजों को रिकवर करने का। बट जो डेवलपमेंट प्रोसेस तक का एक टाइम है, जहां पे अपने आप को आप टेस्ट लॉन्च कर सकते हो, मार्केट का फीडबैक ले सकते हो, मार्केट फिट बना सकते हो, वो सारी चीजें आपके हाथ में होती है। वंस आप एक कंफर्म हो जाते हो कि ये मेरा एक पूरा मार्केट साइज है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अब डेवलप हो चुका है, देन यू हैव टू गो फॉर द गो टू मार्केट। फिर वो इन लाइफ में आता है अनदर जर्नी, और फिर एंड ऑफ लाइफ में आता है। डेफिनेटली कोई अगर प्रोडक्ट आया तो वो एंड ऑफ लाइफ में भी जाएगा। सो डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने यहाँ इसलिए दिखाए हैं कि इन्वेस्टिगेट फर्दर। अगर आपको लग रहा है कि वैलिडिटी नहीं है मार्केट की, आप दोबारा फर्दर उसे इन्वेस्टिगेट करें इस पार्ट पे आके, जब तक कि आप वो जस्टिफाई ना हो जाए। फर्दर स्लाइड में आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इसका बेस्ट, और हो सकता है अगर टाइम बचा एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा 5 मिनट की, जिसमें आप वैलिडेट कर पाओगे इस चीज को। अगर डेवलपमेंट फेज पे है और आपका स्टार्ट डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहां पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि होन रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिजाइन सोल्यूशंस एंड डिलीवरेबल क्या है मेरे, और डिमॉन्स्ट्रेट द रिक्वायरमेंट्स मेट, वो हो रही है नहीं हो रही है। तो क्या मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए डेवलपमेंट इस पॉइंट पे आके, अगर मेरा मार्केट वैलिडेट हो गया है, जस्टिफाई मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, आपने अपनी राइट रिक्वायरमेंट्स कर रखी है, और अगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, कर दिया है आपने, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी पड़ेंगी कि आपको बिल्ड मोर करना है या उतने में ही आपका काम हो रहा है, जो आपकी मार्केट जो आप मार्केट टारगेट ऑडियंस लेके चले थे वो सेटिस्फाई है नहीं है। अगर यहाँ तक डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर द मार्केट फिट, मतलब गो टू मार्केट जा सकते हैं आप। वैलिडेट फिट करेंगे फॉर द मार्केट, ट्रायल करके देखेंगे उसे कि कितना मेरा ट्रायल आ रहा है। एक छोटी सेगमेंट्स ऑडियंस पे आप उसको मार्केट में जाके पुट करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे कि कितना, और डिफरेंट चैनल्स वो डिफरेंट पार्ट्स है कि आप कैसे गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज में जाएंगे। तो जीटीएम इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे उसे टच बेस नहीं कर रहा हूँ। और दैट इज अ फाइनलाइज प्रोपोजिशंस प्रिपेयर फॉर द लॉन्च, कि कैसे उसे लॉन्च करना है। तो इन लाइफ में होगा डेफिनेटली वो सेल हो रहा होगा, ट्रैक का परफॉर्मेंस करोगे, फिक्स इश्यूज करोगे, और आपको फिर मार्केट में पता चलेगा क्या मुझे इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत है, कितना मैं ग्रोथ ले सकता हूँ। उसके बाद डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की एक एंड लाइफ भी है, और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली उस पर R&D कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दैट इज अ फुल जर्नी ऑफ द स्टार्टअप्स, जहाँ पे आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। दैट इज अ विनिंग कॉन्सेप्ट। मैं आप जल्दी अपने मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूँ कि जो एक प्रोटोटाइप उसका प्रोसेस और डेवलपमेंट तक का प्रोसेस है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट किया कि यू कैन से दैट कि बिफोर गोइंग टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, लॉट ऑफ स्टार्टअप ये गलती करते हैं, और बिकॉज माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम द डीप टेक स्टार्टअप्स, तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप की ज्यादा बात करूंगा, नॉट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स ये कभी कभी गलती करते हैं कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को बनाने बैठ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक एक अगर रियल सेक्टर का एग्जांपल लें, तो कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग एक बनाना चाहता है, अपना प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करता है, तो आपने देखा होगा एज अ प्रोटोटाइप के लिए वो एक फ्लैट रेडी करता है, कि वो दिखाता है क्लाइंट्स को और टारगेट ऑडियंस को कि जब आप इस सोसाइटी में एंटर करेंगे, जबकि वो बनी नहीं है पूरी, आपको ये फ्लैट पूरी फुल सुविधाओं के साथ देगा, कि जबकि वो ऑडियंस की उतनी कैपेसिटी है, उतना सामान उस फ्लैट के अंदर परचेज करने की नहीं है, लेकिन वो उस फ्लैट का जो सैंपल फ्लैट बनता है वो बिल्कुल ओरिजिनल फील देता है। उसमें सारी एमिनिटीज होती हैं, मतलब चाहे आप मतलब किचन की बात करें, शॉवर की बात करें, बेड की बात करें, ड्राइंग रूम की बात करें, उतनी चाहे कैपेसिटी नहीं है इंसान की उतनी एमिनिटीज रखने की, लेकिन जो बिल्डर है वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो सारी एमिनिटीज पुट करता है, क्योंकि वो एक ड्रीम दिखाता है अपनी ऑडियंस को कि मैं ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जिन एमिनिटीज पे बात करते हैं, सोचते हैं, ये वो सारी एमिनिटीज को वहां दी जाएंगी। तो सिमिलरली वो क्यों दिखाता है, वो एक विनिंग कॉन्सेप्ट है उसका, कि वो उसे पुट करता है तो उसे पता है कि मेरे अगर 100 लोग उसे वहां देखने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें 80% लोग ऐसे होंगे जो इस मॉडल को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, यार चीज बहुत अच्छी है, मुझे यही लेनी है।
सो यही हमारा विनिंग कॉन्सेप्ट है। जाने से पहले होता क्या है कि विनिंग कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले कि होता क्या है कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद विनिंग कॉन्सेप्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगा कि कहां से आपको डेवलपमेंट फेज में जाना चाहिए। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट लुक लाइक दिस। आई एम टेकन एक एग्जांपल ऑफ जिलेट। एक जिलेट ने एक ना प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि रेजर है। तो 5 to 6 टर्म है आपकी, जहां पे आपका विनिंग कॉन्सेप्ट एक डिपेंड करता है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर जिलेट की बात करें तो जिलेट क्या है, एक रेजर्स है एंड ब्लेड्स फॉर मैन। जिलेट्स portfolio for razors and blades is designed with the man to advanced technology for comfortable shape, from a 3-bladed disposable razor to our advanced 5-bladed system razors, a great shaving within your grasp. तो इसमें 5 टर्म्स आप देखोगे। द फर्स्ट जिलेट, जिलेट इज ब्रांड नेम। तो जब भी आप किसी भी प्रोटोटाइप को, बिल्कुल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को, अपनी प्रॉब्लम को एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में, सॉल्यूशंस को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये ध्यान रखना कि आप केवल उसी समय के लिए उन चीजों को डेवलप नहीं कर रहे हो, वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो केवल उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए नहीं कर रहे हो। यही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका जब प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च में जाएगा और वो प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा, वो विनिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में हिट होगा, तो यही आपका ब्रांड बनने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है, जो इनिशियल फेज है उसको आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है। लास्ट फेज को मार्केट दिमाग में रखते हुए बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी कि आप किसी भी चीज को उठा के उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के जल्दबाजी में डेवलप करके और गो टू मार्केट हो जाओ। वो आपको बहुत बड़ा थ्रेट दे सकता है। अगर 60 to 70% टाइम आप इनिशियल फेज में लगाते हो फॉर द फाइंडिंग द प्रॉब्लम टू मेकिंग द proof of concept on a particular solutions, then test launch, take the feedback from the audience, improvise their feedback, put the different amenities or you can say facilities or you can say another services in your product को improvise किया, और then feel that कि 100 में से 80 लोग मुझे हाँ कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा सेलेबल होगा, then you have to go for the development process, then after the go to the market. because होगा क्या, जब go to the market जाएगा तो जिलेट, द नेम इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम, वहां से आपके स्टार्टअप का ब्रांड नेम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन्होंने मैन की बात करें, जिलेट रेजर्स एंड ब्लेड्स फॉर मैन, तो मैन इज अ टारगेट कस्टमर। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप में लेके जा रहा हूं, जो फ्लैट मैंने बनाया दिखाने के लिए, वो किस टारगेट कस्टमर के लिए है। और अगर मैंने 1.5 CR से 2 CR तक के प्रोडक्ट एक मैंने फ्लैट बना के एमिनिटीज को रख दिया रेडी, तो मैं नहीं जाऊंगा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्हें जाके प्रमोट करूंगा और जाके कम इनटू द माई सोसाइटी और देखो कि इस तरह से बिल्डिंग बनने वाली है आने वाले टाइम में। मैं फिर एक अपर लेवल के टारगेट ऑडियंस को चेक करूंगा कि वो मेरा टारगेट कस्टमर्स होगा। तो आपको वहां से अपने ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, स्टार्टिंग फेज में ही सोचना पड़ेगा आपको कि मैं क्या, मेरा फ्यूचर इस प्रोडक्ट को लेके क्या होगा। यू आर वेरी सीरियस बिकॉज इट्स योर ब्रेन चाइल्ड जो कि आप डेवलप कर रहे हो उस मार्केट में। इसी तरह सिमिलर बेसिस में अगर आप देखोगे, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर अ कंफर्टेबल शेप। तो वेदर, अगर आपने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने उठाया है जिसपे आप पीओसी करने जा रहे हो, वेदर एनी टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, विच टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग और यू आर पुटिंग इनटू योर प्रोडक्ट, वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा हूँ। बिकॉज ऑल द टेक्नोलॉजीज राइट नाउ इन आवर पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी सारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, और मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज से ही प्रॉब्लम्स को एक इनकी यूएसपीज ऐड हो रही हैं और एक डिफरेंट यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर से हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर अ कंफर्टेबल शेप। तो उन्होंने यूज किया है इसे द एडवांस टेक्नोलॉजी, कि उसका टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर द कंफर्टेबल शेप। तो अपने प्रोडक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है इनिशियल स्टेज पे कि आप उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर रहे हो जिसको आपको फोकस करना है। दैट इज a core benefit, that is another the core benefit. If we talk about the target competitor, a 3-bladed, तो फ्रॉम अ 3-bladed, तो 3-bladed हो सकता है मार्केट में 1-bladed हो, सेकंड ब्लेडेड हो, तो टारगेट कॉम्पिटिटर से वो 3-bladed पे लेके आए। और सेकेंडरी बेनिफिट भी आपको चेक करना पड़ेगा, शेव इज विद इन योर ग्रेप्स। तो सेकेंडरी बेनिफिट एंड रीजन टू बिलीव, कि कोई जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट पे बिलीव क्यों करे। तो आरटीबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट, की रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए और सेकेंडरी बेनिफिट्स क्या होने चाहिए। तो शेव विद इन योर ग्रेप्स, तो आपके ग्रेप्स में होगी, मतलब कंफर्टेबल है, आपके हाथों में है, और ये मतलब दैट इज द वे द कॉन्सेप्ट लुक लाइक, कि इस तरह से कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम बात करें विनिंग कॉन्सेप्ट की, कि विनिंग कॉन्सेप्ट ये कैसे बनेगा, तो
फिलहाल तो मेरे पास एक एक्सरसाइज है। अगर ऑडियंस को चैट बॉक्स में मैं एक जस्ट एक लिंक दे रहा हूं और मैं एक छोटी सी सिचुएशंस में पुट करने की कोशिश करूंगा। जस्ट सो मैं एक लिंक मिला होगा आपको मैसेज बॉक्स में, मिल गया है सबको? यस सर। हाँ, अब मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ सारी ऑडियंस को। आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा 3-4 मिनट के लिए, सारे स्टूडेंट्स का जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ आवर स्टार्टअप, दैट इज एक्वा सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने एग्जाम, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अदरवाइज ये एक्सरसाइज मैं स्टूडेंट से भी करा सकता था किसी से। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और वो लिंक पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक करना है। ये वन ऑफ आवर स्टार्टअप है जो कि हमारे आईटेक पार्क में, एक्वा सिंथेसिस, इसने सैफरॉन जनरेट किया है। ये कंडीशन सुन लीजिए, उसी के बाद वो आंसर आप पुट कर सकते हैं उस गूगल फॉर्म का, तब आपको समझ में आएगा। इन्होंने पीओसी किया है, दैट इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कश्मीरी सैफरन है, जो कि कश्मीर में सैफरन सिर्फ साल में एक साइकिल में होता है, मतलब पूरे साल में एक बार वो कश्मीरी सैफरन वहां आता है। ये उन्होंने वहां की प्रॉब्लम्स को ऑप्ट किया कि पूरे साल में कश्मीरी सैफरन एक बार है और मार्केट में डिमांड बहुत है, इंटरनेशनली बहुत डिमांड है सैफरन की, केसर की। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आया कि ये हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के थ्रू अपनी लैब बनाएंगे। उस लैब में पूरी लैब सेटअप करी और उस लैब में ये इन्होंने सोचा कि हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि जो कश्मीरी सैफरन पूरी साल में एक साइकिल में होता है, हम वही पूरा इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर लैब में बनाएंगे और वो इन्वायरमेंट के थ्रू हम साल में 4 साइकिल में हर क्वार्टर में उसको जनरेट करेंगे। जो कश्मीरी सैफरन कश्मीर में सिर्फ एक साइकिल में होता है, वो टेम्परेचर सिर्फ एक बार मेंटेन होता है पूरे साल में, जहां पे वो सैफरन जनरेट होता है। तो ये साल में 4 साइकिल निकालेंगे उसकी, तो प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा और देन मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करेंगे, उससे बेटर क्वालिटी से जनरेट करेंगे। और उन्होंने फिर वो लैब पूरी बनाई। उस लैब के बाद उन्होंने उस साइकिल को कंप्लीट किया और हमने करीब स्टार्टिंग में 1 से 2 ग्राम, जो कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने पिक भी दिखाई है, हमने 102 ग्राम सैफरन उसमें जनरेट किया। और हमने एक रसमलाई भी बनाई जिसको हमने टेस्ट भी करके देखा। ऑलरेडी ये टेस्ट लेबोरेटरीज में है कि किस ग्रेड का सैफरन जनरेट हुआ है, बट हमने उस टेस्ट लैब को भी करके देखा कि हाँ, ये रसमलाई में हमने डाल के देखे 2 पीस की किस टाइप का कलर आ रहा है, कैसा कलर आ रहा है, कि क्या क्वालिटी है इसकी। तो मैंने बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में एक आपको एक आइडिया शेयर किया है, पिच किया एक तरीके से कि क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो गूगल फॉर्म आप सभी लोग खोल के पुट कीजिए। उसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे उस गूगल फॉर्म में, कि ये अगर मैं आप लोगों के सामने 150 लोगों के सामने, जितनी भी ऑडियंस अभी है उनके सामने अगर ये मैं आइडिया पिच कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि जो मेरा मार्केट है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा टारगेट कस्टमर है, जितनी इंडस्ट्री चाहे B2B है या B2C है, मैं पहली एक पॉइंट इसमें इंक्लोज कर दे रहा हूं, मतलब एक पॉइंटर डाल दे रहा हूं कि मैंने ये बहुत शॉर्ट सेगमेंट में करी एक्सरसाइज। तो मैंने एक छोटे सिनेरियो में से बताया, लेकिन आई होप आप इसे समझ पाएंगे कि एक स्टार्टअप है जो कि कश्मीरी सैफरन जनरेट कर रहा है, उसकी साइकिल को मेंटेन करेगा साल में 4 बार, जो कश्मीर में सिर्फ एक बार मेंटेन होती है, और उस साइकिल की वजह से ही वो केसर वहां प्रोड्यूस होता है। और वही पॉइंट वो यहाँ पे अपनी लेबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने वो टेम्परेचर मेंटेन किया है और साल में 4 बार उस सैफरन को वो जनरेट कर रहे हैं। तो सैफरन का प्रोडक्शन 4 टाइम्स कर दिया बेटर क्वालिटी के साथ। ये उसका पीओसी हो गया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, जो मैंने आपको दिखाया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कि क्या ऑडियंस इसे डेफिनेटली वुड बाय, क्लाइंट इसे डेफिनेटली खरीदेंगे, आप क्या सोचते हैं? प्रोबेबली वुड बाय, क्या ये प्रोबेबली खरीदेंगे उन लोगों को, या माइट और माइट नॉट बाय, मतलब खरीद भी सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। और क्या आपको लगता है प्रोबेबली वुड नॉट बाय, मतलब हो सकता है नहीं खरीदेंगे लोग। और क्या आपको लगता है डेफिनेटली वुड नॉट बाय, डेफिनेटली तो बिकेगा ही नहीं, केवल कश्मीर वाला ही बिकेगा। आपको क्या लगता है? जस्ट आपको अपना एक सिंगल क्लिक पे अपना जो माइंडसेट है वो दे देना है ऑन बिहाफ ऑफ दिस पिचिंग, मतलब इस प्रोडक्ट के बेस, इस आइडिया के बेस पे और पीओसी के बेस पे, मतलब जो मैंने आपको दिखाया एक शॉर्ट सेगमेंट में। तो ये जैसी हो, कोई भी एक मुझे बताइएगा कि क्या रहा, मैं उस हिसाब से फिर। हाँ, कुछ रेस्पॉन्सेज आए हैं, जो भी रेस्पॉन्सेज आए हैं मैं उस रेस्पॉन्सेज के हिसाब को, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिख रही है। आपको क्या रेस्पॉन्सेज दिख रहे हैं लोगों को? सर रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हमें। एक हाँ सेकंड सर, तो वी मैं अपनी स्क्रीन, वी कैन सी सर, वी कैन सी। ओके। सो ये दैट इज अ रेस्पॉन्सेस। अभी तक मेरे पास 28 रेस्पॉन्स आए हैं और 29 हो गए।
मैं इसी पे आपको ना एक एनालिसिस बता रहा हूं, जो मैंने विनिंग कॉन्सेप्ट की बात करी थी। वो विनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट जब भी आप कोई भी स्टार्टअप, मतलब चाहे स्टूडेंट करे या फैकल्टी लेड स्टार्टअप हो, अगर वो स्टार्टअप कर रहा है और उसने पीओसी बना लिया, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आपकी जो अर्ली स्टेज अर्ली एडॉप्टर्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनका एक पूल बनाइए। उस पूल में आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट लॉन्च कीजिए कि ये मेरा प्रोडक्ट कैसा बना है, और डेफिनेटली उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि डेफिनेटली वुड बाय, प्रोबेबली वुड बाय, माइट और माइट नॉट बाय, प्रोबेबली वुड नॉट बाय और डेफिनेटली वुड नॉट बाय। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिया, इसमें 45% लोगों ने कहा है अभी तक कि प्रोबेबली वुड बाय, कि हाँ डेफिनेटली प्रोबेबली ये बिक जाएगा मार्केट में। 28% लोगों ने कहा है माइट और माइट नॉट बाय। और अगर हम बात करें रिमेनिंग की, तो परसेंटेज बहुत कम है, और डेफिनेटली वुड बाय की बात करें तो वो है 20%। आप तो आप टॉप 2 बॉक्सेस को देखिएगा। पहला बॉक्स है ब्लू कलर का डेफिनेटली वुड बाय, और दूसरा बॉक्स है ऑरेंज कलर का प्रोबेबली वुड बाय। दोनों के अगर नंबर में ऐड करूं तो ये पहुंचता है करीब 67 से लेके 70% तक। तो ये एरिया है। अभी और भी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, 51 से ऊपर 91 से ऊपर रेस्पॉन्सेज हो चुके हैं, तो करीब ये डेटा जा रहा है 70% के आसपास का। सो व्हाट इनटू माय प्रेजेंटेशंस नाउ, अब प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर टॉप 2 बॉक्सेस की परसेंटेज लेस देन 80% है, मतलब आपने विनिंग कॉन्सेप्ट कब आप डिफाइन करेंगे उसे, कि आपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज तक चले गए, आपने प्रॉब्लम उठाई, प्रॉब्लम को बहुत क्लैरिटी से देखा, आपने टीम बनाई, आपके माइंड में एक प्रोबेबल सॉल्यूशंस आया, उसमें आपने ब्रांडिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करनी है, क्या टारगेट कस्टमर होगा, क्या उसका सेकेंडरी बेनिफिट होंगे, क्या उसके प्राइमरी बेनिफिट होंगे, वो सारे आपने उसको R&D एनालिसिस कर लिया आपने। उसके बाद आपने एक पीओसी किया उसका, मतलब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में गए, आपने प्रोटोटाइप डेवलप किया। प्रोटोटाइप डेवलप करने के बाद जब आप कॉन्सेप्ट यूज टेस्टिंग में गए, तो आपको अपने पास उतने पीरियड में एक पूल बनाना है, जिस पूल में आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, फ्लोट करोगे। कि ये अगर आपको, चाहे आपको वो फ्री में बेचना पड़े, चाहे आपको कुछ कम पैसे पे भेजना पड़े, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भेजना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर पॉकेट, कि आपको ग्रांट कहां से मिली है, कितना पैसा है, और क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग है उस प्रोडक्ट को लेके, या कितना आपका इनपुट कॉस्ट उसके अंदर लगा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ कि आप उसको क्या रखते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बेचते हो, नो प्रॉफिट पे बेचते हो, या कैसे आपको बेचते, दैट इज योर पार्ट, बट आपको पूल पे टेस्ट करना है। अगर वो टेस्टिंग करने के बाद जो टॉप 2 कॉलम है उसकी परसेंटेज लेस देन 80% आ रही है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ विनिंग कॉन्सेप्ट। आप अभी गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज पे या डेवलपमेंट फेज में मत जाइए, जहां और ज्यादा पैसा आपका इन्फ्यूज होगा। आपको फिर उन्हीं सारे कस्टमर से फीडबैक लेना है कि इसके अंदर कमी क्या है। जिसने अगर कहा है माइट नॉट बाय, तो ऐसी क्या रीजंस हैं, प्रोबेबली वुड नॉट बाय क्या रीजंस, तो वो आपको इसको इनपुट देंगे। उनके इनपुट से अपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोसेस को आपको क्या करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या कुछ फीचर्स मैंने ऐड नहीं किए, या टारगेट कस्टमर्स के सारे पेन पॉइंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, और मैंने सारी चीजें इसके अंदर पुट कर दी है। तो जब ये 70% से ऊपर अप्रोक्सीमेटली 80% क्रॉस कर जाएं, दैट इज द यूज ऑफ विनिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यूज टेस्टिंग के लिए है, और ये विनिंग प्रोटोटाइप है। देन आप इसे डेवलपमेंट फेज में जाके और देन गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज में जा सकते हैं। तो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरह से आप डेवलपमेंट फेज से पहले कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका डेवलपमेंट फेज का? ये कनेक्ट होता है, Please request you to keep your voices audible. Yes. जी सर, ऑडिबल हैं आप। Yes. Yes. So अगर वो टॉप 2 बॉक्सेस आपके 80% से क्रॉस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ विनिंग कॉन्सेप्ट, और देन फिर आप उसे डेवलपमेंट फेज में जा सकते हो। लास्ट 3 to 4 मिनट्स में आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम स्टार्टअप जो डीप टेक में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में है, सिमुलेशंस के सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई भी आइडिया है और पीओसी करते हैं, तो उन्हें कहीं से 10 लाख 7 लाख की प्रोटोटाइपिंग ग्रांट मिली हुई है, तो वो तुरंत ही उसे डेवलपमेंट फेज में जाना चालू कर देते हैं कि उसे हम बनाते हैं, और वहां पे उनका कई ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। बट मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, सिस्टम सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर भी ऐसे हैं, कि यू हैव टू क्रिएट अ डिजाइन, बेस्ट डिजाइन आप पहले डेवलप कर सकते हो, उनके
आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स एंड प्रोसेस डिजाइन, जो आप पूरा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को डिजाइन करके उसे प्रोसेस डिजाइन में ले जा सकते हो, और देन उसे ऑप्टिमाइजेशन में भी ले जा सकते हो। मैं भी छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इसके लिए। जब आप सिमुलेट करके देख लो उन सॉफ्टवेयर पे कि हाँ जो मैं सोच के चल रहा था, जो मेरे आउटकम्स थे, जो मेरे टारगेट ऑडियंस के फीचर्स थे, व्हेनेवर वी हैव अचीव दोस फीचर्स और नॉट, अगर वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उसे रन करके 90% से ऊपर तक की एक्यूरेसी दे देता है, देन आप फॉर हार्डवेयर पार्ट पे जाइए कि उसे डेवलपमेंट फेज में जाके पुट कीजिए। क्योंकि वंस एक बार आप डेवलपमेंट फेज में जाते हो तो उसको दोबारा उतना पैसा लगाना, उनको चेक करना एक टिपिकल प्रोसेस हो जाता है। मार्केट में ये सारी फैसिलिटी आज की डेट में स्टार्टअप्स को देख के लिए है, चाहे सीमेंस की बात करें, डिसॉल्ट की बात करें, मैंने सीमेंस में भी वर्क कर रखा है, डिसॉल्ट में भी कर रखा है, लॉट ऑफ, और एजुकेशन के लिए बहुत सस्ते सॉफ्टवेयर वो लेके आए हैं जो कि एकेडमिक सूट्स के लिए हैं, और उनके ट्रायल वर्जन फ्री भी हैं इनकी वेबसाइट पे, तो वहां से चेक कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका छोटा सा। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो डिजाइन करने जा रहे हैं, डिजाइन एंड वैलिडेशंस में उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, देन प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट में मेरी कमी है क्या नहीं है। देन आप, एक प्रोसेस और भी होता है रिवर्स इंजीनियरिंग की, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उससे बेटर सर्विसेज का कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें नए फीचर्स लेके आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी अपने डिजाइन एंड वैलिडेशन के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो वंस आप डिजाइन क्रिएट कर लो, उसे वैलिडेट कर लो, देन आप उसे टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हो। वहां पे भी वो सॉफ्टवेयर के फीचर्स है, उसकी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हो, उसकी थर्मल एनालिसिस कर सकते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो, उसकी फ्लूइड फ्लो एनालिसिस कर सकते हो, उसका इंजन सिमुलेशन एनालिसिस कर सकते हो, उसकी बैटरी एनालिसिस कर सकते हो, उसकी मल्टी बॉडी एनालिसिस कर सकते हो। मतलब उस प्रोडक्ट के आप सारे पार्ट एनालिसिस को आराम से कर सकते हो। और देन अगर आप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को सोच रहे हो, तो आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी उसको पहले आप, यू कैन से डिजिटल ट्विन उसका पूरा क्रिएट कर सकते हो। दैट इज, चाहे आप उसका प्लांट लेआउट ऑप्टिमाइजेशन हो, प्रोसेस प्लानिंग सॉल्यूशंस हो, प्रोसेस वैलिडेशन हो, डिजिटल फैक्ट्री हो, या रोबोटिक एप्लीकेशन सॉल्यूशंस हो, तो ये सारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस भी उसके अंदर कर सकते हो। मैं एक छोटा सा हल्का सा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर लगा, वन ऑफ द स्टार्टअप दैट इज फ्लैश एनर्जी, उसने एक विंड पैनल क्रिएट किया है, और वी हैव टू सजेस्ट दैट कि आप पहले इसे सिमुलेशन पार्ट में लेके जाओ, रादर देन इतना बड़ा हार्डवेयर एक प्रोटोटाइप फेस में क्रिएट करके देखो, और उस बेसिकली सिमुलेशंस में आप उसके सारी एनालिसिस को करके देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ बताई है आपको। प्लांट लेआउट ऑप्टिमाइजेशन हो, प्रोसेस प्लानिंग हो, या कुछ भी हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो। तो मार्केट में कई सारी चीजें ऐसी हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहां स्टार्टअप फाउंडर्स को फाउंडर मिलके पैसे को डायरेक्टली प्रोडक्ट पे ना यूज करके, पहले उसके डिजाइनिंग से लेके, डिजाइन डेवलपमेंट से लेके और ऑप्टिमाइजेशन तक उसका काम सॉफ्टवेयर स्केल्स पे कर सकते हैं। वंस दे सेटिस्फाई कि हमने जो फीचर्स लिए थे वो 90% से ऊपर तक की एफिशिएंसी दे रही है, नाउ वी हैव टू गो इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। आपका टाइम बचेगा, आपको नए फीचर सेट करने का टाइम मिलेगा, ऑडियंस को आप क्लियरिटी दिखा सकते हो, 3D सिमुलेशंस के थ्रू उन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिच अच्छा कर सकते हो, और बहुत चीजें क्लैरिटी के साथ मार्केट में दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि लेस इन्वेस्टमेंट होगा। वंस यू कॉन्फिडेंट, देन यू हैव टू गो टू द फिजिकल प्रोसेस। सो दैट इज एनएफ, आई थिंक 45 मिनट्स, बाकी स्लाइड्स यूज की नहीं है, और आई एम ओपन फॉर एनी टू टेक एनी क्वेश्चन। आई होप मैंने 45 मिनट्स में जितना मैं सपोर्ट कर सकता था उतना मैंने इस चीज को लिया है। थैंक यू सर, काफी एनलाइटनिंग सेशन था एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, and forum is now open for any question answers. If participants have any questions, they can ask before we head to the next session. Participants can unmute themselves and ask if they have any questions. So thank you so much, sir. So एक question आया है chat box में. So what if somebody copies our idea? नहीं, इफ कॉपी, अगर मैंने उसी चीज को कहा है कि आइडिया को अगर कोई, देखिए पूल, आप अगर पूल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो पूल यूज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पूल आप किस ऑडियंस में ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि अपने कॉम्पिटिटर के साथ आप पूल में लेंगे। और अगर आप अदर देन मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली हम जब भी बात करते हैं तो अगर कोई भी डिजाइन हमने किया है तो उस डिजाइन को पेटेंट की बात करते हैं, और हम आजकल सारे स्टार्टअप को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल लेट मत कीजिए पेटेंट कराने के लिए, आईपी लेने के लिए। अगर आपने छोटा सा भी डिजाइन बनाया है, अपने आइडिजिन फेस पे बनाया है, यू हैव टू थिंक दैट कि ये मेरा यूनिक डिजाइन है, तो सबसे पहले आप उसको पेटेंटिंग प्रोसेस के लिए जाइए, उसको पेटेंट के लिए ओपन कीजिए, देन आफ्टर यू कैन ओपन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। The next question आया है, how can we patent our idea?
डेफिनेटली बहुत सारे पेटेंट एजेंट भी मार्केट में हैं, और हमारा भी आईटी दिल्ली का एक सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज ITTO। वो डिपार्टमेंट पूरा पेटेंटिंग प्रोसेस को देखता है, उसके एप्लीकेशंस को देखता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी कि हम पेटेंटिंग प्रोसेस के लिए आओगे, तो आई हैव टू कनेक्ट विद डिफरेंट पेटेंट एजेंसीज की आपको पेटेंट को कराने में वो पूरी हेल्प करेंगी कि कैसे वो पेटेंट प्रोसेस होता है। और अपने कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज में भी आप ले सकते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं पेटेंट प्रोसेस के लिए कि कैसे आइडिया को आपको पेटेंट कराने हैं। तो एक डिफरेंट पूरा सेशन पूरी टॉक है इसके ऊपर कि कैसे पेटेंट पे जाना है, कैसे करना है। तो एक डिफरेंट प्रोसेस है पूरा। बट एवरी यूनिवर्सिटी देयर इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर पेटेंटिंग। बट यू हैव टू अवेयर कि मुझे जो मैंने बनाया है उसको बिना कहीं मैं ओपन किए पहले पेटेंट प्रोसेस के लिए जाऊं, इफ यू थिंक दैट कि हाँ दैट इज अ पेटेंटेबल प्रोसेस। Any other questions? So thank you so much, sir. काफी enlightening session था, बहुत informative था, तो I am quite sure कि participants को काफी अच्छा लगा है session. Okay, so we have one last question. So what if one of our teammate or co-founder ditches us and executes that idea? तो हम क्या करेंगे? Sir, what is if one of our teammate or co-founder ditches the idea with his personal mindset? नहीं, डेफिनेटली आप यू हैव टू थिंक, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि भाई मतलब डेफिनेटली आप अगर आइडियोलॉजी स्टेज पे हैं, दैट इज नॉट द मीनिंग कि जो आप प्रोबेबल सॉल्यूशंस दे रहे हैं वो मार्केट फिट हो। तो अभी क्योंकि आइडियोलॉजी स्टेज पे हैं, आप उनसे साथ मिलकर अपनी टीम बना सकते हैं। अगर लेकिन वो आइडिया तो आपने फिर पुट किया होगा ना, तभी तो वो डिटिच करेगा चीज के लिए। भाई आइडिया आपने कैसे उन्हें ओपन कर दिया कि ये मेरे दिमाग में प्रोबेबल सॉल्यूशंस का आइडिया है, ये आप कह रहे हैं कि आपका को फाउंडर है वो, तो दैट इज अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस। आपको को फाउंडर ही वो चूज करना पड़ेगा जो आपका बहुत क्लोज हो। तो दैट इज डेफिनेटली इट्स अनदर पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग कि आप टीम बिल्ड कैसे कर रहे हैं, किसको अपना को फाउंडर चूज कर रहे हैं। तो ऐसे तो बिल्कुल मतलब जनरल लाइफ में भी लाइफ पार्टनर चूज किया, कोई वो डिच कर जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो को फाउंडर इज जस्ट लाइक योर लाइफ पार्टनर। तो इसीलिए कई लोग अपने लाइफ पार्टनर को ही अपना को फाउंडर बना लेते हैं अपनी टीम मेट में कि क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 बॉयज 2 गर्ल्स या 1 बॉय 1 गर्ल करके हो, और आपको लगता है कि दोनों मिलकर उस प्रोबेबल सॉल्यूशन को थिंक टैंक बनाया है और दोनों मिलकर सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो डेफिनेटली को बॉन्डिंग। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर भी जाते हैं तो दैट इज नॉट इशू, आप उनसे पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हो, आप पिवट कर सकते हो, आप डिफरेंट फीचर्स उसके अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे उनसे डिफरेंट कि उससे बेटर आपको क्या दे सकते हैं। वैसे होता नहीं है ऐसा, अगर को फाउंडर अलग नहीं होगा तो ना आप डेवलप कर पाओगे ना वो डेवलप कर पाएगा, अगर जेन्युइन आप दोनों मिलके उस आइडिया पे पर्टिकुलर काम कर रहे हो। So is Okay, there sir. any Thank is there you, not sir. any like a legal law or regulation? हाँ, प्लीज टेल मी। I'm just asking about just like I already asked you. First of all, thank you so much, sir, to answer all my questions. And just like I have already asked, what if one our team, our co-founder ditches us according to our idea, and it just working like its own mindset. So, is there any law to protect our idea before execution? नहीं, डेफिनेटली इट्स अ पेटेंट प्रोसेस ओनली, इट्स अ पेटेंट प्रोसेस, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप पे वो चीज होनी चाहिए। और आई थिंक नेक्स्ट सेशन आपका एथिकल पे ही है मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन उनसे ज्यादा बेटर, वो मुझसे ज्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे। इसीलिए रखा गया है। So thank you तो so आई much, होप मैंने Alok, sir. 45 मिनट्स में काफी कुछ कवर करने की कोशिश Yes, करी। sir. Definitely, definitely. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू। So, without taking further time, let me invite the next speaker of this day. Welcome, Mahin, sir. So, Hi. so Mr. Mahendra Gupta has more than 20 years of experience in the education sector and 17 plus years in the field of innovation and entrepreneurship. He has served in reputed institutions as a key player to set up innovation and entrepreneurship ecosystem. His specialization in the domain of entrepreneurship allows to set up technology business incubator and innovation and entrepreneurship development center supported by Department of Science and Technology and MSME in the past reputed organization. He has filed and published 2 patents for designing of innovative table for infants and plate dispensing and counting machine. He received Young Achiever Award in the area of entrepreneurship development from Entrepreneurship and Skill Development Association of India in the year 2016. He is a certified management consultant from DSIR, DST Government of India, and accredited entrepreneurial motivational trainer by
Nisbat Noida, an Apex Institute under the Ministry of Entrepreneurship and Skill Development, Government of India. He is also certified trainer in the Kolb training methodology by International Finance Corporation, IFC, an entity of World Bank, and Nisbat, Government of India. Currently, he is working as CEO of iNurture Incubation Foundation, powered by ABE SEC, a non-profit technology business incubator. The iNurture is supported by DST, MEITY and MSME Government of India, along with Government of UP, Start in UP program with a total funding of 8 crore approximately. So welcome, sir. And without taking further time, I invite you to start the session. Thank you, and very good afternoon to everyone. I believe we both are comfortable to speak English and Hindi. Yes, So sir. we go with the mixed language. I'm doing sharing the two content with you. One is to be now a baseline and understanding about the fundamentals and concept. And second, how to be go when you are directly thinking to launch a product or a service or a startup. See, the very simple question comes to the mind when I have the job option, why I should think about to go for a business or a startup. And see, the Indian society or our community do not pushing, do not supporting the people who wants to be an entrepreneur. In fact, the social thought process is someone who wants to think about a business must be he's not capable to go for job. So ये कहीं ना कहीं विचारधारा है हमारे समाज में कि भाई कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करने जा रहा है इसका मतलब वो कैपेबल नहीं है नौकरी पाने के लिए, उसको नौकरी नहीं मिला होगा इसलिए वो बिजनेस करने जा रहा है. ये एक थॉट प्रोसेस है हमारे सोशल सेगमेंट में. rather the people support, the people criticize, and those who actually accept this criticism as in their honor, respect, achievement, applause, they succeed. Those who take it very seriously, they definitely deep down in a sea. So मेरा बड़ा सिंपल टाइटल है कि जॉब ऑप्शन अवेलेबल है, नौकरी का माहौल है, नौकरी सब जानते हैं, तो स्टार्टअप क्यों करना चाहिए. और बहुत सारे हमारे पर्सनल चैलेंजेस हैं. हाउ आई कन्विंस माय फैमिली that I do not, I'm not looking for the placement this year. I want to go for a launch of a startup. I want to go for a business. All right. So what already briefed by Hitanshu is you already aware it. Is my presentation moving? Slide is changing. Yes, ma'am. Hello? Your slide is moving. Yes. It is All moving. right. So Yes, what very gist about me and what you people have not know about me, not available in any platform, any social media platform. I am being earlier as a computer science engineer, and then I turned to become a teacher, then I turned to become a trainer, then I turned to become a manager, and then I co-founder and CEO. I also having an investment portfolio, invest in some of the startups. I also handling a lot of international, national clients, engagements in the startup ecosystem. The total fund size which I raised for an institution here in ABS is approx more than 10 CR, and I am very happy that my 6 of my startups have raised around 20 CR from the investor portfolio. Many people, many students, many faculty members have been trained out under my entrepreneurship programs, FDP programs, who become the change agent for the society. And the Pradeep is one of them. This is certain, give you the sense what kind of the person I am. Now look at the very generic scenario. It's in a 2023 data of about population. We are now the world most populated country. And if I say we have around 67% approx population which between the age of 15 to 64 who are the direct contributor, expect to the direct contributor for the economy. So you can understand and analyze that how much percentage of youth or Gen Z or youth and other senior personality available to us in terms of population for the economical growth and development. Now come to the next data. So we have around 1,17,000, 23,000 startups registered under the DPIIT. How many are deep techs? How many are routine business? How many is a traditional business? It's still a question. But we have this number of data now, startups who are registered under the DPIIT.
And then we have around 113 unicorns we produce. Now, the assignment to you is to find out the numbers in percentage in terms of population, how much startup we have created, in terms of youth studying in an engineering college, how much startup we have created, in terms of startups who are registered, how many unicorns we have created, and you know it. We have the largest unicorn created in a COVID duration. So 43, 48, 45 unicorns were created during the COVID duration 2020, 23, 24, 22. And this was the highest peak. You also know that if you are aware about the investment startup industry, the last financial year, which we have from January, from April 23 to 31st March 24, were pretty slow down in investments. Only the bits and pieces terms of investments are happen, and maybe the coming financial year and the day after the election, we have a good investment in a ecosystem. Now, another data. This is a survey which is done by the IIM Ahmedabad earlier. And their survey report says that we have around 87% youth having ability. And this is, I'm very precisely saying about the youth. 87% of the entire Indian youth having the ability to become the entrepreneur. It means none of us is incapable to be launch a venture. None of us is incapable to become a business person or the entrepreneur or the startup or anything in the specific except the job scenario. But the same data also say that we have the 30% population out of it having the ability to attitude to become the entrepreneur. So we have a large population which having ability to be an entrepreneur, but we do not have an attitude to become an entrepreneur. That's why this entrepreneurship is in a generic terms called it's a mindset. So you want to be an entrepreneur, do not want to be an entrepreneur, it's your only mindset. But the evaluation, the understanding is needed. There are studies needed to know before you're thinking about to be an entrepreneur. It's a completely individual choice. You want to launch a startup, you want to become an entrepreneur or not. It's completely individual choice. No one can force you. No policy can help you to be an entrepreneur, successful entrepreneur, until unless you do not have an understanding, you do not have a clarity. I have a large experience in this domain, not only in terms of the startups, from the venturing, business development, industrial development, factory setup, SME, 1% enterprise and all. So I have seen that there's a large number of schemes floated by the government in past all too. State governments, central governments, and some of the CSR fundings also. But no government scheme created an entrepreneur. See, the schemes never motivated you to be an entrepreneur. If I offer you 12 lakh rupees, 20 lakh rupees, 1 crore rupees in a seed money, you do not, maybe ignited, but you do not sustain this business. And because you are not really eager to become an entrepreneur. But if you are interested to be an entrepreneur, there's a large number of resources, not only in terms of money, in all the things can available to you, can access to you. You yourself can bring all the resources in your enterprise. So I personally believe that this is a question, this is a thought process of an individual to be an entrepreneur or not. Everyone has his own reason to become an entrepreneur. Everyone has his own thought process. Everyone has his own goals to be an entrepreneur. And this is not only to become the rich. There's a large number of social entrepreneurs working in these segments who are contributing in a society, who are believed to be in a growth and development of the society rather than their own wealth. All right, come to the next slide. This is in a cash flow coordinate. There's a very popular book called The Cash Flow Coordinate, written by Robert Kiyosaki. So Robert Kiyosaki ने 4 विंडो बताई हैं पैसे कमाने की. एंड हमारे एजुकेशन के सिस्टम में हमने पास में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है जो ये बताता हो कि यार पैसे कैसे कमाने हैं. So there's a 5% wealth which is lie in the side of just hold on. Sorry. So entire global community, the global entire population, where 5% of wealth is lie, and 90% 5% population who is engaged in an employee
either they are doing job or they are doing an engage in a self employment. So पूरे विश्व की पॉपुलेशन में से 95% पॉपुलेशन यही कर रही है, इधर वो नौकरी करते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड की 5% वेल्थ को शेयर करते हैं. इन अदर साइड 95% wealth shared among the 5% of the population which are engaged either in a business or in an investment. Now the point is how I justify this. आपको वो फोर्ब्स का लिस्ट पता होगा, आपने सुना होगा कभी, फोर्ब्स का लिस्ट आता है रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. फोर्ब्स की लिस्ट आती है टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन. अब आप सोचिए पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, उसमें से 100 लोग जो अमीर हैं, कितना परसेंटेज होता है वो. सो अब आप ये समझ लीजिए. तो ये थॉट प्रोसेस है. जो अमीर है वो अमीर क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ऐसा नर्चर हो गया है. सो पॉइंट ये नहीं कि हम ना रिच नहीं बन सकते या सुपर रिच नहीं बन सकते, बन सकते हैं. हमें अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बट कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा. डेज आर गॉन व्हेन वी हैव द चैलेंज ऑफ द ब्रेड एंड बटर. If you are doing certain engineering program, professional program, I believe you do not have a challenge of the bread and butter at your home. So आपके पास अब आपको ये प्लान करना है कि बॉस मुझे अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मेरी अगला फूड प्लानिंग क्या होना चाहिए. सो ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है. नाउ डिफरेंस क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर में? समझ लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब एक इंडिविजुअल जो अपने आप को जॉब देता है. अब वो छुट्टी पे जाता है तो पैसे नहीं आएंगे. आप एक फ्रीलांसर हैं, आप छुट्टी पे जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे. लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस एक सेटअप है. उस सेटअप में क्या है कि अगर आप घूमने भी जाएंगे, हॉलीडे बेस पे जाएंगे, तो भी पैसे आते रहेंगे. एंड देन जो आप पैसे कमाएंगे वो पैसे जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टीपल जगह. अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे एक व्यक्ति चारों जगह से पैसे कमा रहा हो? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? एक व्यक्ति जो आपने अपने समाज में देखा हो, जो एम्प्लॉय भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, बिजनेस ओनर भी है और इन्वेस्टर भी है. नो आंसर? Sir, there is an answer in the chat box. They say politicians. पॉलिटिशियंस सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे होते हैं बताइए जरा, और एम्प्लॉयड कहाँ होते हैं ये भी बता दीजिए मुझे. किसके यहाँ नौकरी करते हैं पॉलिटिशियन? नौकरी का मतलब होता है 9 से 5 की नौकरी. सुबह जाना है, शाम को आना है, मालिक के कहने पे, इफ दे अलाउ. सो दिस इज अ वेरी निश एग्जांपल. एक और आंसर आया है, फादर. ये क्या है? सॉरी, डॉक्टर. एक डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है. वो मॉर्निंग और इवनिंग अपने क्लिनिक पे बैठता है. उसने अपने पैसे से एक मेडिकल स्टोर ओपन कराया हुआ है, और इन तीनों जगह से जो पैसे कमाता है उसको वो इन्वेस्ट कर देता है, प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में और कहीं और. सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बार बार कैसे कमाता है भाई? नौकरी करता है और सेल्फ एम्प्लॉयड भी है. ठीक है, वेरी गुड. बिजनेस क्या है उसका? बिजनेस सेगमेंट क्या है उसका? सोच लीजिएगा वो बिजनेस कैसे, क्या बिजनेस कर रहा है. अगर वो कुछ सेलिंग कर रहा है तो बिल्कुल हो सकता है वो, और सारे पैसे कमा करके उसने कुछ. Sir, maybe he can promote some products like hairstyle products. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वो शायद हो सकता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हो. Exactly. So it could be as in the business sector, right? करेक्ट, बिल्कुल. लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल सेलिंग करना और एक प्रोसेस सेटअप करना सेलिंग के लिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस. वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो गया, लेकिन वो उसने कोई प्रोसेस सेटअप नहीं करा. जिस दिन वो छुट्टी पे जाएगा उसका शॉप बंद रहेगा. तो बिजनेस का मतलब एक प्रोसेस सेटअप है जिसमें उसके रहने और ना रहने से रेवेन्यू आना बंद नहीं होता. ऑलराइट, सो ये प्रीटी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया होगा. एक और चीज आप देखिए, हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, हम सुनते थे कि भाई पहले एक व्यक्ति कमाता था पूरे घर में और सब लोग खाना खाते थे, सबकी सुविधाएं पूरी होती थी. फिर ये हुआ कि फैमिली पूरी कमाती है, हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं. आज पूरी फैमिली अर्न करती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे जॉब करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं. अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है. वो क्या है? एक व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट करता है, ये पैसे कमाता है. एक व्यक्ति एक नौकरी आज की डेट में नहीं करता, या एक तरीके का काम नहीं करता. वो जॉब भी करता है, वो कुछ बिजनेस भी करता है, वो कुछ और भी करता है जो प्रोग्रेसिव है. सो एक व्यक्ति एक घर में 4 लोग हैं, और 4 लोग 4 जगह से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा करके, चाहे ऑनलाइन कंसल्टिंग करके, चाहे प्रोडक्ट सेल करके, कुछ भी करके, पैरेलल विद जॉब एंड पैरेलल विद बिजनेस एंड ऑल द थिंग्स. सो अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है, और हम अपने बिजनेस में बहुत जगह बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स की. आएंगे आगे बात करेंगे. चलिए, सो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? इस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आता है? कुछ भी.
एक चाय की टपरी से लेकर के एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कोर इंडस्ट्री तक सब all comes under the one umbrella. It's called the entrepreneurship. Startups also come is a one of the unit under the startup under the entrepreneurship. And see why the startups are different than the other. ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है. Why someone think about only a startup? Why not only to be launched in a generic traditional enterprise? This is the question. You go and ask it. So fundamental बिजनेस जो है वो फंडामेंटल सिंक है और आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है. स्टार्टअप अभी 2000 में यूएस में कॉइन किया गया था when there is a .com boom. Many of you have maybe not born that time. So स्टार्टअप बहुत बाद में आया. स्टार्टअप क्यों आया इसका एक अलग स्टोरी है. सो बिजनेस पहले से चल रहा है. हर आदमी कुछ उसके पास जो स्किल सेट है वो बिजनेस करता क्या था. वो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता था वो अपने स्किल सेट्स का बिजनेस करता था. लेट्स से कि एक कुम्हार जो है, एक पॉटर जो है, वो जो बना सकता है उसके पास वो स्किल सेट है, उसको वो बिजनेस करता है. एक कारपेंटर जो है जिसको वो काम आता है उसका बिजनेस करता है. तो बिजनेस जो है वो स्किल बेस्ड है. वन. सो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड तो बन गए, लेकिन जब आप इसको पूरा एक प्रोसेस से इसको एक्सपेंशन की दिशा में लेकर जाते तब ये एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट होता है. सो सेल्फ एम्प्लॉयड तो बहुत है हमारे समाज में. जिसको गाड़ी ठीक करना तो गाड़ी ठीक कर रहा है, जिसको ना फर्नीचर बनाना तो फर्नीचर बना रहा है, या जिसको मशीन ठीक करना आता है. बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं. सो बिजनेस आर स्किल बेस्ड. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि वो स्किल तो शायद उसको बहुत कुछ नहीं आता है, वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देता है. राइट. सो लेट्स यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी बिग लीडर्स, रिलायंस एंड ऑल. क्या उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फंडामेंटल पता है? क्या उनको रिफाइनरी इंडस्ट्री का पता नहीं पता? हाउ दे डू इट? सो दे मोबिलाइज द रिसोर्स. उनको पता है यार मेरे को ये काम करना है, ये गोल अचीव करना है, तो इसको कौन कर सकता है? बोले यार एक फलाने प्रोफेसर उनको ले आओ, वो एक साइंटिस्ट उसको ले आओ. सो दीज एंटरप्रेन्योर्स एक सेल्फ एम्प्लॉयड के बंदों जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करता है कि वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना सीख जाता है, कि बॉस लोगों से हेल्प लेना सीख जाता है, लोगों को हेल्प देना सीख जाता है. सो एक कुछ पर्सनल ना बेसिक्स उसके अंदर चेंजेस आते हैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर. देन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप और द एंटरप्रेन्योर. सो फंडामेंटली वापस आते कॉन्सेप्ट पे. एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट में सब कुछ है. स्टार्टअप एक छोटी सी जर्नी. आप देखो अगर बॉट के फाउंडर है अमन गुप्ता, तो अमन गुप्ता भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं ना आज की डेट में, चाहे पार्टनरशिप में चाहे कोलैबोरेशन में. पीयूष बंसल है, लेंस कार्ड का फाउंडर है, आज अपना वो सेटअप चला रहा है. ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर रहा है ना, बाइंग सेलिंग तो कर रहा है ना, उसका स्टोर खुला हुआ है. सो आप सोचो कि बेसिक बिजनेस का फंडा कभी कॉन्सेप्ट बेसलाइन कभी चेंज नहीं होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा. अब उसमें स्टार्टअप फ्लेवर डालना है. ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है जिन्होंने अपने आप को स्टार्टअप में कन्वर्ट किया है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं. क्यों यार ये जरूरी क्यों है? मैंने बोला ना कि ये इंडिविजुअल चॉइस है. आपको ये चॉइस समझना पड़ेगा कि मेरा डिसीजन जो है वो क्यों लेना है एंटरप्रेन्योर बनने का, क्यों नहीं लेना है. पहली चीज, एंटरप्रेन्योरशिप is a concept of self excellence, is a concept of prosperity, is a concept of win-win, is a concept of achieving certain big. Is not the concept of revenue generation, is not the concept only to be generate wealth. Very simple. एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता. एक बिजनेस माइंडसेट का व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स. सो एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट है वो पैसा, प्राइमरी मोटिव पैसा नहीं है. उसका प्राइमरी मोटिव वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है समाज में जो वो चाहता है. उसका प्राइमरी मोटिव वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी है. वेल्थ क्रिएट करना चाहता है लेकिन वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहता है. बिजनेस ओनर वेल्थ क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन वो कलेक्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. ये डिफरेंसेस है. सो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सीलेंस है. सेल्फ एक्सीलेंस का मतलब हर एक व्यक्ति अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेगा, इस पूरी फंडा को समझेगा, फंडामेंटल्स को समझेगा, तो सेल्फ उसके अंदर विकास होगा, उसका अपना डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. जब हर एक इंडिविजुअल सही होगा तो समाज भी सही होगा. जब समाज सही होगा तो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा. अब कैसे ये चीजें होती हैं तो ये देख लीजिए. तो एक इंडिविजुअल करेक्शन कब आता है? जब आप अपनी कॉम्पिटेंसी को एनहांस करते हैं. आप जो हैं उसमें जो बेस्ट है उस बेस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए. कमियां सबके अंदर हैं, हाँ मेरे अंदर भी होंगी. उन कमियों को छोड़ करके मेरे अंदर अच्छा क्या है, उस अच्छे को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसका ये कॉन्सेप्ट है. अब इससे क्या होता है, जब आप अपनी स्किल सेट को एनहांस करते हैं, कॉम्पिटेंसी को एनहांस करते हैं, तो आपके अंदर फियर कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है. और जब आपका कॉन्फिडेंस और फियर कम हो जाता है, अच्छा होता है और फियर कम हो जाता है, तो आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं सोचते हैं. डरा हुआ व्यक्ति सिर्फ नौकरी के लिए सोचता है. उसे लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता नौकरी के अलावा. सो ये एक मन का भाव है. डर कहीं होता है, कहीं नहीं होता.
हम बचपन में सुनते थे कहानी कि वहां पे मत जाना, उधर देखो रोशनी नहीं है, उधर अंधेरा और वहां भूत है। किसी को नहीं पता, आज तक किसी ने भूत देखा भी नहीं है। सो डर, रिस्क उसी तरीके का है। हमें सिर्फ फोमा क्रिएट करा गया है, हमें ऐसा बताया गया है कि डर है, बिजनेस नहीं हो सकता। आप किसी बिजनेस पर्सन से मिलोगे कि बिजनेस क्यों नहीं हो सकता, मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो। आप किसी सरकारी व्यक्ति के माहौल में रह रहे होंगे तो वो सब कहेंगे नहीं नहीं भाई, सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, वो तो प्राइवेट नौकरी भी करने नहीं देंगे आपको। चलिए वापस आते हैं, तो हम अपने समाज में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक एक अनकॉन्फिडेंस, एक फियर, विद फियर फुलफिल ना यंगस्टर, और हम एक इनोवेटर, रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम क्या माइंडसेट, उनके माइंड क्या थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं? नाउ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हमारे समाज में ऐसे लोग आएंगे जो इनोवेट करेंगे, कुछ नया काम करेंगे, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? दे प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। व्हेन दे प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स, दे जनरेट द वेल्थ। व्हेन दे जनरेट द वेल्थ, तो वेल्थ को करेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। अब आप बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्या पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट है? अगर इसका आप कोर एजेंडा देखेंगे तो ये पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो देश को बनाने का है, ये कॉन्सेप्ट तो समाज को सुधारने का है, ये कॉन्सेप्ट तो जीवन में आगे बढ़ने का है। जब ऐसे कॉन्सेप्ट की बात आती है तो इसको सोचने और में के लिए, इसको करने के लिए किसकी परमिशन लेने की जरूरत है? मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो शायद मुझे अपने पिता से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है, लेकिन उनसे डर के नहीं रहने की जरूरत है कि भाई नहीं, मेरे पापा तो मना कर दिया। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, आपको मैं भेज रहा हूं, आपको ये अच्छा लगे, समझ में आए तो उसको करिएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जिस तरीके से माँ खाना बनाती है, खाने में बहुत सारी चीजें रखती है, बहुत सी चीज हमें पसंद नहीं होगी। हम बोलते हैं हम एजुकेशन में आपको वो सर्व कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लेवर सर्व कर रहे हैं। आप उसको टेस्ट करिए, अच्छा लगे तो आप उसको और आगे ले मांगिएगा, अच्छा ना लगे तो छोड़ दीजिएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अचीवर। सो ये अचीवर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब बात ये आती है, अचीवर क्या है? अचीवर वो है जो एक बार सिर्फ सफल गोल अचीव नहीं करता, एक बार सिर्फ नहीं करता वो अचीवमेंट का काम, उसके अंदर आदत पड़ जाती है और वो रोज अचीवमेंट का ही काम करता है। टाटा आज भी अचीवर की बात करते हैं, ठीक है। होमी भाभा, जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने किया, उसके लिए वो एक अचीवमेंट है। सो मेरे पास एक जीवन में उद्देश्य है, वो उद्देश्य अचीवमेंट से भरा हुआ है या नहीं, ये आपको सोचना है। आपको सोचना है कि आपकी नौकरी जो है वो अचीवमेंट से भरी हुई है कि नहीं। आपको सोचना है कि आपका जो स्टार्टअप है वो अचीवमेंट से भरा हुआ है कि नहीं। सो थॉट प्रोसेस ये है कि आपको एक अचीवर बनना है। स्टार्टअप, इनोवेशन करना, रिसर्च करना, ये अचीवमेंट में आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि ये वो काम है जो बहुत चैलेंजिंग है। जब कोई चैलेंजिंग काम करता है तभी तो हम कहते हैं यार, सर व्हाट इज इनोवेटर, रिस्क टेकर? इनोवेटर क्या होता है? जो इनोवेशन करता है। रिस्क टेकर क्या होता है? जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा होता है, जो कहता है नहीं कि ठीक है इसमें असफल होने की संभावनाएं हैं लेकिन फिर भी मैं इसको करूंगा, ये रिस्क टेकर होता है। चलिए, अब्दुल कलाम, ये सब मैं उन लोगों के नाम आपको दिखा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट किए, जिन्होंने अपने जीवन में एक साधारण गोल को प्राप्त करने का काम नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ जीवन में नौकरी प्राप्त करने का काम नहीं किया। सो इन्होंने वो काम किए, जो शायद समाज की दृष्टि से बहुत जरूरी थे, देश की दृष्टि से बहुत जरूरी थे, और उन्होंने वो सारे कामों को आगे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मैं जब स्टार्टअप लॉन्च करूंगा तो मैं लॉन्च कैसे करूंगा। तो स्टार्टअप लॉन्च करने का 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिसर्च करना उस प्रॉब्लम के ऊपर। रिसर्च करने के बाद अपनी एक टीम तैयार करना, उसका बिजनेस मॉडल तैयार करना, उसका सोल्यूशन का डेवलप करना, ये सारा काम है। और इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना, MVP बनाना, प्रोडक्ट बनाना और लॉन्च करना। इसको हम डिटेल में भी आगे भी समझेंगे। मैं उन चीजों को यहां से स्किप कर दूंगा जो शायद जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं उन चीजों की बात करूंगा। इथिकल स्टेप्स क्या है? अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं या स्टार्टअप अगर लॉन्च करने जा रहे हैं और आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है, आपने उसको गलत विचारधारा से उस काम को करने जा रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये सबसे पहला इथिकल स्टेप है। मैं अपना एक स्टार्टअप, मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक सही दिशा दे सकूं।
मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं समाज में इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं एंटरप्रेन्योर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं इससे आगे बड़ा होकर के लोगों को रोजगार दे सकूं। सो ये सब वो विचारधाराएं हैं, ये उस गोल के साथ जुड़ी होनी चाहिए जो इथिकली करेक्ट है। मैं इसलिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या ये इथिकल है? अनइथिकल तो नहीं है, लेकिन क्या ये राइट सेंस है डिसीजन लेने का? तो ये एक पहलू है जो आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस हम सब जानते हैं और एक स्टार्टअप में कंपैरिजन दिखा है, क्योंकि हम इस सेशन में स्टार्टअप से फोकस कर रहे हैं, इसलिए उससे बात ज्यादा कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस का एक प्लानिंग होता है, और यहाँ क्या होता है, एक इनोवेशन होता है। एक मतलब कोई टेक्नोलॉजी को आप बनाना चाहते हैं जिसको मार्केट में लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसका मतलब एक इनोवेशन। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल होती है, आप पैसे लगाते हैं अपना, और यहाँ क्या होता है, उसके पास कैपिटल नहीं, वो रिसोर्स को मोबिलाइज करता है। इधर क्या होता है, फैक्ट्री होती है, शॉप होती है, और इधर क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में वो कैपिटल या बैंक से लोन लेता है, और इधर क्या होती है, इक्विटी होती है, शेयर होती है, जिनको दे करके वो सारे सपोर्ट को एक्सेस करता है। आइदर वो सीड मनी हो, आइदर वो एंजल इन्वेस्टमेंट हो, आइदर वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो। अब ये वैल्यू ऑफ डेथ क्या है? वैल्यू ऑफ डेथ है जो ये बताती है कि स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? अगर आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं और आप अपने सही समय से अपने रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन नहीं कर पाते हैं, या पीछे लास्ट में आशीष बोल रहे थे कि मेरा को फाउंडर मुझे डिच कर गया, टीम छोड़ के चली जाती है, पैसे नहीं ला पाते हैं, सीड मनी जनरेट नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट को सही समय पे नहीं टेस्ट कर पाते हैं, और आप मार्केट को, प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज नहीं कर पाते हैं या सर्विस को कॉमर्शलाइज नहीं कर पाते हैं, तो रेवेन्यू नहीं आता। रेवेन्यू नहीं आता तो क्या होता है, आप इस वैल्यू ऑफ डेथ में स्टक हो जाते हैं, और यहाँ से आप जो है आपका बिजनेस बंद हो जाता है। सो जितने भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं, उन वैल्यू ऑफ डेथ को, स्टार्टअप्स को उस वैल्यू ऑफ डेथ को क्रॉस कराने के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो सीड सपोर्ट देना हो, चाहे वो मेंटरिंग देना हो, चाहे वो लीगल असिस्टेंस देना हो, चाहे आईपीआर सपोर्ट देना हो, इंक्यूबेशन प्रोग्राम में उन्हीं सब पे काम होता है। अब इसके आगे की भविष्य की अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप गो टू मार्केट में जाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो आप पिक कर लिए जाते हैं। जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आप कोई ना कोई एंजल आ जाता है, कोई ना कोई वीसी आ जाता है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और आप तेजी से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए यहाँ जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जिस दिन आप चलेंगे और चल के आगे बढ़ेंगे तो 5 साल में आपकी ग्रोथ 40%, 60x के आसपास हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक और नाम और देते हैं, उसको बोलते हैं हॉकी स्टिक मॉडल। वाई व्हाट इज क्रेजी अबाउट स्टार्टअप्स? क्यों लोग क्रेजी हैं इतना, क्यों ऐसा उनके मन में लगा हुआ है? सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्टअप्स में पैसे जल्दी से ग्रो करते हैं, जो कि किसी और इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म जो हम जानते हैं, चाहे पीपीएफ में पैसा रखना हो, चाहे एफडी कराना हो, चाहे किसान विकास पत्र हो, चाहे लोन हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, इन सबसे कई गुना ज्यादा तेजी से पैसे स्टार्टअप्स में ग्रो करते हैं, इसलिए लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हो। हर सेलिब्रिटी इन्वेस्ट कर रही है इस समय। आप जाके सबका पोर्टफोलियो देख लीजिए, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। एक और वर्ड आता है वैल्यू बेस्ड एंड रेवेन्यू, दोनों चीज अलग अलग है। मैं कैश पॉजिटिव हूं या मेरा वैल्यूएशन हाई है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बायजूस का कैपिटल वैल्यूएशन बहुत हाई है, कैश पॉजिटिव है या नहीं पता नहीं। ठीक है, स्विगी का देखेंगे वैल्यूएशन हाई होगा, कैश पॉजिटिव है नहीं। तो ये एक दूसरा गेम है। So this is the first part of my presentation. If you want to ask anything, please go ahead so that I can move to the next one. Any questions from students? You can put your question in the chat box if you have any questions. Okay, Ashish has some questions. Ashish, you can type your question in the chat box. Ashish, are you here? Yes, I am here. Hello. So you can ask here, please. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, actually, I was just asking, like, tell me one thing that must be avoided when I start a startup. Should be avoided, must be avoided. Too much hurry. Too much hurry. Okay. Too much hurry in a promotion of marketing of your product and service. Okay. Right. So how to information decision making. Okay. So how to deal with negative peoples? Like when I just start a startup, they just call me like a noob man or something else. So how to deal negative peoples? Negative Peoples about the startups. peoples. Yes, exactly. अब देखो यार, वक्त बताएगा कि निर्णय जो तुमने लिया है वो सही है या नहीं। हाँ, exactly. बिल्कुल. So
Silence is a better answer sometime than speaking any word. Exactly. So your results down the line 3 years, 4 years will speak all the things. You are either, and it's give all the correction to you. अगर you get failed, तो आपको correction आ जाएगा, और अगर आप succeed हो गए तो उनको correction आ जाएगा. Thank you, sir. I got my answer. Too much Right. hurry must be avoided. Thank you. Because I have seen there's a large number of student-based startups who are very, very keen and very eager to go for the marketing content first. So I primarily say your hardcore deep product development is a much higher needed than the marketing one. Correct. So marketing is an additional cost for any startup or any company. Avoid this. अगर आपका प्रोडक्ट रेफरल से बिकता है ना, रेफरेंस से बिकता है, पब्लिसिटी से बिकता है, तो Word of mouth. Yeah. Shall I move? Yes, sir. All right, so now we are coming to the next portion of this. I guess you have clear understanding about the ethical steps. So now these are the steps which we have already followed. The first 2 steps we call it's pre-stages. And see, first 2 steps are very necessary while you thinking to launch your startup, because this is a time when you are thinking about to choose a right problem statement. Right problem statement process का raw material है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स का, ये मैं आपको बता दूं. एंड लोग यहाँ पर गूगल से सर्च करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आते हैं, इसलिए उनके स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं. अगर आप एक जेनरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर काम करते हैं, जिस पे आपको पता है कि यार ये तो मतलब मेरे समाज की एक प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को दिक्कत है, तो 10 लोगों को और की होगी, 10 के 100 की होगी, दूसरे शहर में होगी, दूसरे जिले में होगी, दूसरे स्टेट में होगी. सो आपको मतलब आपकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं. सो पहले 2 स्टेप्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च ओवर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रिसर्च बहुत जरूरी है. ये पहले 2 स्टेप्स हैं. हम इसे डिटेल में भी समझेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. सेकेंड, इसके बाद फिर वो टीम फॉर्मेशन और बाकी चीजें आती हैं, हम लोग उसको 1 by 1 समझेंगे. लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज मैं तो बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज ए स्टेज जहां से आप जो है वो सीड मनी रेस कर सकते हैं किसी से भी, एंजल से, इंक्यूबेशन साइट से या कहीं और से भी. अगर आपने सही बिजनेस की प्लानिंग करी है, टीम साइज सही है, लोग सही हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो आपको पैसे रेस करने में तकलीफ नहीं होगी. MVP मैं डिटेल में बताऊंगा बेटा आगे. वैसे मिनिमम वाइव प्रोडक्ट क्या होता है समझा देता हूँ. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी बातें भी चर्चा आलोक जी बात कर रहे थे. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं इन सब की बात हो रही थी. MVP क्या होता है बता देता हूँ. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज एन प्राइमरी टेस्टिंग विच वी कॉल इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज कॉल्ड लिटमस टेस्ट. हम लोग केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट करते थे अपने. तो वो क्या होता था, वो प्राइमरी टेस्ट होता था जिससे ये अंदाजा लगाते थे कि यार ये सही है या नहीं, ये टेक्निकली वाइबल है या नहीं. इट्स कॉल्ड द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखते होंगे, लोग बहुत सारे सर्किट वगैरह ऐड करके वो ब्रेड बोर्ड पे सारी टेस्टिंग करते हैं, विच कॉल्ड द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. देन इज अनदर कंपोनेंट विच कॉल्ड द MVP. व्हाट MVP मतलब मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट. व्हाट मिनिमम इज कस्टमर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. So let's say customer is suffering from a pain. Correct. उसको चोट लग गया है, मेडिकल लैंग्वेज थोड़ी सी बात करते हैं. चलिए, आपको थोड़ी सी इंजरी हो गई है, ब्लड निकल रहा है, तो और आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप मिनिमम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई उसके पास बैंडेज वगैरह हो ना, क्लीन करने के लिए कंपाउंड हो, ठीक है, बहुत लग्जरी मेडिसिन नहीं हो लेकिन कुछ तो दवाई हो उसके पास, इतना एक्सपेक्ट करोगे. ये मिनिमल है. एक फोन का मिनिमल फीचर क्या होता है? फोन से कॉल हो जाए, कॉल रिसीव हो जाए, उसमें स्क्रीन हो और कुछ बटन हो. ये फोन का मिनिमम फीचर है. कुछ बैकअप देता हो मोबाइल फोन का. लेकिन अब आप फोन बना रहे हैं, उसमें इंटरनेट भी चलेगा, उसमें स्मार्टफोन भी होगा, टच स्क्रीन भी होगी. ये एक फुल प्रोडक्ट है. सो मिनिमम प्रोडक्ट का मतलब ये, MVP का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. अगर कस्टमर की मिनिमम रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पूरा कर दिया जाए तो फिर तो मेरे प्रोडक्ट मेरे बिकने की संभावनाएं या सेल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी.
आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। देन द प्रोडक्ट जो आपको आलोक जी ने बताया कि एक बिल्कुल एकदम जैसा फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है, उसका एक प्राइमरी वर्जन लैब में बना हुआ, सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। चलिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये बड़ा प्रश्न है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप स्वयं है एक प्रॉब्लम को, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आप फील करते हैं, सेंस करते हैं, और आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको, है ना, मामा ने बताया अरे देखो कितनी गर्मी हो रही है यार, कुछ करो यहाँ पे किचन में कुछ करो, तो किसी ने कहा ठीक है यार एग्जॉस्ट फैन बना देते हैं, किसी ने कहा ठीक है वो ना हम चिमनी लगा देते हैं, किसी ने कहा कि ठीक है कुछ वेंटिलेशन का काम कर देते हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, उसका आइडेंटिफाई आपने कर लिया। ठीक है, आप एक हफ्ते के लिए नैनीताल घूमने जा रहे थे, बालकनी में प्लांट्स लगे हुए, मम्मा ने कहा अरे तो देखो इतना सब सारे पौधे सूख जाएंगे जब हम घूमने जाएंगे, तो उसको किसी ने सेंस करा, फैमिली से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, उसके लिए सोल्यूशन बनाया, उसको देखा यार सोल्यूशन बहुत अच्छा चल गया, उसने पड़ोस में दे दिया, पड़ोस ने और पॉपुलरिटी पूरी सोसाइटी में बिक गया, आपने उसको अमेजोन पे बेचना स्टार्ट कर दिया। सो नाउ यू सेंस यू गॉट ए क्लू ऑफ एन अ प्रॉब्लम फ्रॉम द होम, देन योर फ्रेंड्स टू अलॉन्ग विद योर कम्युनिटी, ये सब लोग आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बहुत सारे ना ऑप्शंस देते हैं, क्लू देते हैं, और हम उनको ग्रैब कर लेते हैं, उससे कुछ बनाते हैं। व्हाट इज द SIH, आ रहा हूँ बेटा। देन फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर्स। अब आप देखिए अपने अमेजोन पे जब बाई आउट करने जाते हैं तो आप यूजर का रिव्यू पढ़ते हैं, क्या उसने क्या लिखा है, तो किसी ने निगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, 1 स्टार दिया हुआ है, तो उसका फीचर पढ़ा कि सर इसमें ये चीज़ नहीं है, आपको एक गैप मिल गया कि यार ये इस प्रोडक्ट में कमी है, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूँ जिसमें ये कमी नहीं होगी। यू गॉट एन आइडिया ऑफ, यू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी गैप क्या है, अब आप देखिए लेंसकार्ट जो कर रहा है, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हमारे शहर में हैं जो स्पेक्स बेचते हैं, करेक्ट, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। अब वो उनके पास में जब भी कस्टमर आता है तो हर एक को वो स्पैक्स बना के 10 स्पैक्स बनाते हैं, 15 स्पैक्स बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही लगेगा। उसमें टाइम कंज्यूम होता है, उसमें उसका समय ज़ाया होता है। वो दिन भर में 100 कस्टमर को बेच सकता था, अब वो 10 को इसी बेच पाता है, क्योंकि उसको बार बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है, फिर पैक करके रखना पड़ता है उसको। क्या ना बिल्ट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ टेक्नोलॉजी गैप है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगू यू गो। सेकेंड, मार्केट गैप क्या है, कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुरादाबाद में, या मुरादाबाद से और आगे चले जाइए वहाँ रूरल एरिया से पता ही नहीं लोगों को, इसको कॉल्ड मार्केट गैप। आपने आइडेंटिफाई किया, ये इससे बिजनेस निकलता है। फिर आपने देखा क्वालिटी गैप क्या है, आपने देखा बॉस बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं लेकिन पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है जो सस्टेन करे, मे बी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मेरे शहर में तो लाइट कस्टमर है, लेकिन एक्सपेंसिव हो सकता है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट बाई आउट करने वाले लोग हैं। अगर मार्केट में 100 रुपए की शर्ट बिकती है तो मार्केट में 5,000 की भी शर्ट बिकती है, चाहे वो ल्यूस फिलिप की हो, चाहे वो वेनुसन की हो, चाहे वो किसी और कंपनी की हो। सो इसका मतलब मेरे सोसाइटी में, मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे तरह अलग अलग तरीके के सेगमेंट हैं, और मुझे उनको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मार्केट फ्रेगमेंटेशन। चलिए, प्राइस गैप क्या है, या तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है या प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, और दोनों ही मैं नहीं ले सकता एक मिडिल क्लास में। बहुत सस्ता लेता हूं तो पैसे मेरे को लगता है ज़ाया हो रहे हैं, बहुत महंगा मैं ले नहीं सकता, तो मेरे को एक सर्टेन प्राइस रेंज में प्रोडक्ट चाहिए, ये प्राइस गैप है। SIH का है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, AICTE ऑर्गेनाइज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करता है, सारी देश से बहुत सारी इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं, जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती है, आप सोल्यूशन बनाइए उसमें से कोई। कौन कह रहा है सिर्फ SIH को सिर्फ जीतना ही खाली एक काम है, SIH के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझ करके एक सोल्यूशन भी तो निकाला जा सकता है उसका, और उसको बेच बचा जा सकता है। देन इनोवेशन चैलेंजेस, बहुत सारे इनोवेशन, इंडस्ट्री के इनोवेशन चैलेंजेस हैं, एंड इंडस्ट्री चैलेंजेस, बहुत सारे इनोवेशन चैलेंज इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइज करते हैं, यू लुक एट दैट, वहां से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल सकती है। या फिर इंडस्ट्री एक अपना इनोवेशन चैलेंज ऑर्गेनाइज करती है, मैंने कुछ सारे इनोवेशन चैलेंज यहाँ दिए हुए हैं, इन सब में जाके देखिए। जैसे टाटा का टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म है कॉल इन्वेंट, इन्वेंट पे आप जाएंगे तो आपको टाटा के केमिकल से लेकर के, TCS से लेकर के, पेट्रोकेमिकल से लेकर के, टाटा मोटर से लेकर के, पूरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करती है वो प्रॉब्लम वहां आती है। अगर आप उनकी एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं उसको वो फ्री पैसे, वो पैसे देते हैं, उसमें फ्री नहीं है, वो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो पे करते हैं उस सोल्यूशन के सिर्फ, राइट। इसी तरीके से प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक प्रोग्राम है, इन्वेंट BC का एक प्रोग्राम है, द इंडिया स्मार्ट प्रोटीन एक चैलेंज है, आप जाइए आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वहां से मिलेगा। देन एक मेगा चीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप जाइए पढ़िए, देखिए पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को वहां डिफाइन करा गया कि वहां क्या चाहते हैं, उसमें क्या बनाना है, आप अपना सर्च करिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करिए, आगे बढ़िए। आई होप आई आंसर्ड सम ऑफ
the understanding about your problem statement. Moving to next. Now आप इधर देखिए इस डायग्राम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कितनी सारी हो सकती हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे n नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिल्ड करे जा सकते हैं। उसमें से किसी एक सॉल्यूशन को चूज करना जो जो कि जिसको बना आप सकते हैं, जिसके लिए क्षमता है आपके पास, जिसके लिए पैसे हैं आपके पास, जिसके लिए काबिलियत है आपके पास, जिसके लिए रिसोर्स आप मोबिलाइज करते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस कहते हैं। नाउ इस इनोवेशन सॉल्यूशन को निकालने के बाद मार्केट साइज यानी कि बिजनेस इवैल्यूएशन, इकोनॉमिकल वायबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल वायबिलिटी तो हमने समझ ली कि भाई मैं बना सकता हूं, मेरे पास टेक्निकल ज्ञान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, लेकिन कितने लोग इसको लेने वाले हैं? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, 10 व्यक्ति के लिए, 20 व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति एंटरप्राइज नहीं खोलेगा। तो इसलिए उसकी स्केलेबिलिटी या मार्केट साइज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें आपको लगता है कि इसमें मार्केट साइज, मार्केट ग्रो करेगा, आपके पास नंबर्स ऑफ कस्टमर होंगे, आप प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ जाएंगे, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आशीष, तुम्हारे प्रश्न में आंसर करता हूं। एक राइट को फाउंडर को पकड़ना, इंगेज करना, ये एक टास्क है, ये एक जॉब है, और इसको स्मार्टली करना बहुत जरूरी है। तो राइट को फाउंडर कैसे पता करें? सबसे पहली चीज ये कि किसी भी व्यक्ति के साथ एंगेजमेंट करने से पहले, बिफोर यू से समवन एज ए को फाउंडर बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इज अ बैड आइडिया। एक व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूं वो मेरा को फाउंडर हो सकता है इफ ही इज ब्रिंगिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट ऑन टेबल। इसका मतलब क्या है कि मैं, लेट्स से कि मुझे फिनेंस नहीं आता है, मैं टेक गाई हूं, और मुझे अपनी टीम में एक फिनेंस अंडरस्टैंड करने वाले बंदे की या स्टोरी टेलर की आवश्यकता है, तो मैं वो खूबियों को अपने डिफाइन करूंगा और वो लोगों को अनाउंस करूंगा, लोगों से पूछूंगा। कोई जरूरी नहीं कि मेरे कॉलेज में हो, मेरे घर में हो, वो कम्युनिटी में कहीं पर भी हो सकता है। सो ये इसमें एक एफर्ट लगाने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये सब चीजें आपको मिल जाती है तो पहले दिन ही बाउंडिंग नहीं होगी कि नहीं ठीक है हमने आपको 50% पार्टनर हो गए, लो इक्विटी लो और मजे करो, ऐसा नहीं होता। हम उसके साथ एक कमिटमेंट करते हैं। पहला तो उसका विजन और मेरा विजन अलाइन होना चाहिए, वन, कि भाई मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसको लगना चाहिए इसमें वैल्यू है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिसको हम लोग मतलब एक राइट बडी होना जैसा बोलते हैं ना, तो ये अलाइन होना चाहिए। सेकेंड चीज कि भाई क्या हुआ कि सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सभी आ जाएंगे। तो ये जो फेलियर वाला जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बॉस क्या होगा अगर फेल हो जाएगा तो क्या करोगे? तो वो बोलेगा नहीं यार हम इसको इस तरीके से करेंगे, वो एक ऑप्टिमिस्टिक सोच लेकर आएगा, थॉट प्रोसेस लेकर आएगा, नहीं क्यों फेल होगा यार, हम इतनी मेहनत करेंगे, हम लगेंगे यार, ये लेकर आएंगे, और रिसोर्स लेकर आएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, बात करेंगे लोगों से। अदरवाइज लोग अगर वो ये आंसर करता है नहीं फेल हो जाएगा तो मैं नौकरी करने चला जाऊंगा, मैं क्या करूंगा फिर यहाँ पे? सो क्या आपको लगता है कि उसका आपका विजन अलाइन है? ये कुछ प्रश्न हैं। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, हेजिटेशन निकाल दीजिए। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी और खराब दोनों बातें होती हैं। तो सिर्फ गुड़ी गुड़ी में ना मजे नहीं है, आप तीखी बात भी करिए, थोड़ा चटकारे वाली बात भी करिए, आपको सही जवाब आएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आप पहले बोल दीजिए कि बॉस मेरी बात खराब लगे तो मेरे को क्षमा करना, लेकिन ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है। सही है? जैसा कि जो पिछले आलोक जी कह रहे थे ना, एक पार्टनर ढूंढना, तो जब लड़का लड़की के घर जाता है या देखने जाता है तो बड़ी सीधी और खराब सब बातें होती है वहां पे कि आप कितना पैसा लगाएंगे, है ना, क्या कर रहा है, कितना कमाते हो। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो जिसके लिए शायद सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसको भी एक सहजता से रखा जा सकता है, एक अच्छे तरीके से रखा जा सकता है, पोलाइट बिहेवियर से रखा जा सकता है। इस पे मैं नहीं जाऊंगा। टीओसी के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, प्लानिंग के लिए बताया गया, मैं इसको नहीं जा रहा हूँ। फोनिक्स रूट कॉज एनालिसिस है, ये प्रॉब्लम को और रिफाइन करने के तरीके हैं कि जेन्युइन प्रॉब्लम तक पहुंचने का तरीका है। व्हाट एंड व्हाई करके मैं लेट हो गया ऑफिस आने में, क्यों? जब क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश क्यों हो रही थी? तो क्यों, जब आप व्हाट एंड व्हाई करते हैं ना, तो आप रूट कॉज से बोलते हैं बॉस इसलिए लेट नहीं हुआ कि मेरी बारिश हो रही थी, मैं इसलिए लेट हो गया कि मैं घर से लेट निकला। तो रूट कॉज ये है कि मैं सुबह उठ नहीं पाया, रूट कॉज ये मेरा अलार्म नहीं बज रहा था, रूट कॉज ये कि मैं लेजी हूँ। ये एक तरीके हैं जिससे कि प्रॉब्लम को हम और रिफाइन कर पाते हैं। मैं ये स्लाइड आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं सीधे सीधे यहाँ आता हूँ। इंडस्ट्री में बहुत बात होती है TRL लेवल पे, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पे, और ये नासा का डेवलप किया हुआ मॉडल है जिसको लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल।
ये इंडस्ट्री में हमारी स्टार्टअप या इन्वेस्टर कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉस आप TRL लेवल 4-5 पे हैं क्या, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो TRL लेवल 4-5 से ऊपर होती है, 4 से ऊपर होती है। प्राइमरी स्टेज में कोई, आइडिया स्टेज में कोई फंड नहीं करता, टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट लेवल कोई फंड नहीं करना चाहता। ऑल्दो कुछ लोग करते हैं लेकिन वो भी बहुत मिनिमम करते हैं। हम भी एज ए इंक्यूबेटर मैंडेट तो है करने का आइडिया लेवल पे, लेकिन उतना रिसर्च लेकर कोई जनरली बहुत कम ही लोग आते हैं कि उनके पास बहुत डीप रिसर्च हो अपने आइडिया लेवल पे और वो एक सही मार्केट साइज वगैरह दिखा पाए। लेकिन फिर भी TRL लेवल के बाद से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इन्वेस्टर को अपने पैसे डालने में, अपने पैसे पार्क करने में, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा। सेकेंड चीज, नाउ यू हैव आइडेंटिफाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने क्या बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया है? वन इज हमने क्या चेक करा था इसके पहले, मार्केट साइज तो चेक कर लिया, लेकिन हमारा कस्टमर सेगमेंट कौन है, हमने क्या वैल्यू क्रिएट करी है उस कस्टमर से, है ना, वो किस टाइप का कस्टमर है, वो ना किस एज में है, वो मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज है, मिड साइज में है, अपनी रेंज में, एज ग्रुप में है, अर्ली स्टेज या फिर बिल्कुल एकदम बेबी है। सो उस पे बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं कि उसका टेक्निकल कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, और बहुत सारे फ्लेवर निकल कर आते हैं। देन क्या क्या रिसोर्स लगना है। सो ये जो BMC बनाना, मैं BMC पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है आज के इस इवेंट का। बिजनेस मॉडल कैनवस भी आपको राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कस्टमर डिलाइट की और वैल्यू प्रोपोजिशन की, कि भाई मिनिमम कस्टमर क्या चाहता है और आप उसको दे क्या रहे हो। सो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है, चार्ट जो है, ये BMC का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। और वैल्यू जो है, एक प्रोडक्ट जो है लोग इसलिए परचेज नहीं करते क्योंकि उनको आवश्यकता है। आज के समय में बहुत सी चीजें हम इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि हम उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज की डेट में यूजर एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, वो यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे सेगमेंट का। नाउ ये सब चीजें तैयार हो गया है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया है, आपने मार्केट साइज चेक कर लिया, BMC बना लिया है, आपने वैल्यू प्रोविजन का निकाल लिया है, और आपने इसका POC भी कर लिया है। नाउ यहां तक करने के बाद जहां पर भी आप जाएंगे, आपसे यही पूछा जाएगा कि बॉस आपका एक डेक चाहिए होगा समझने के लिए। डेक क्या होता है? पिच डेक, ये प्रेजेंटेशन होता है, इसके सर्टेन पॉइंट्स उनको कवर करने होते हैं। सो वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बिल्ड करना पड़े। अलग अलग तरीके की पिचेस हैं, एलिवेटर पिच अलग होती है, और ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट ड्रिवन में, सेंट्रिक में। अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अब आपका एक डेक तैयार हो गया है। मैं फाइनल वर्जन पे आता हूँ। ये एक इन्वेस्टर डेक आपने तैयार बना लिया है सर्टेन पॉइंट से कुछ चीजें डाल करके। जब आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, तो प्रेजेंटेशन तैयार होने के बाद, एक सेकेंड, ऑलराइट, सो पिच डिजाइनिंग में ये सर्टेन चीजें हैं, और इन चीजों को हम अपनी पिच में इंक्लूड करते हैं। फ्रॉम प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट साइज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या होगा मेरा, ये सब चीजें का एक हमारा प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास भी आप जाएंगे वो आपसे यही मांगेगा। और ये आपको क्लैरिटी भी देता है कि बॉस मैं जो करने जा रहा हूं उसमें क्या क्या चाहिए। पिच डेक बनाने के ये बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और अपना डेक बना सकते हैं। चलिए, यहां तक आने के बाद अब आप देखिए कि इस स्टेप पे मैं आपको बोल रहा हूँ कंपनी रजिस्टर करने के लिए। इतनी तैयारी के बाद मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि बस आपका फाउंडर, को फाउंडर, प्रोडक्ट सब कन्विंस हो चुके हैं, आपने तय कर लिया कि बस नौकरी तो करनी नहीं, क्योंकि अपने पास इतना बढ़िया इनोवेशन है, उसका बिजनेस मॉडल भी तैयार है, लोग खरीदने को तैयार भी हो जाएंगे, मैं बना लूंगा ऐसे ऐसे करके सब चीजें। अब आप जाते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है, क्यों मैं ये, और जनरली अगर किसी और के पास आप जाएंगे तो क्या कहेगा, आइडिया है, ठीक है कंपनी रजिस्टर करा दो। लोग ये नहीं जानते कि बॉस कंपनी रजिस्टर कराने के बाद साल की 10-15 हज़ार रुपए की एक खर्चा आप बांध लेते हैं। अब आप नौकरी करते नहीं है, या नौकरी करते हैं तो जो भी करते हैं उससे पैसे निकाल के क्या सिर्फ CA का फीस देंगे? सो यहाँ वो स्टेज है जहाँ पे आप जो है अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराइए। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनमें कि आप बिना कंपनी रजिस्टर कराए फंड रेज कर सकते हैं, आपको ग्रांट एड मिल सकता है अपने इंडिविजुअल नाम पे एज ए इनोवेटर। सो यहाँ आप इस स्टेज में आके आप अपनी कंपनी का लीगल रजिस्ट्रेशन कराइए। यू कैन गो फॉर द LLP, बट आई रिकमेंड यू टू गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इफ यू आर टू मेच्योर टू, और इस स्टेज में आप मेच्योर हो चुके होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाइए क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन एंड आउट करने की, और बहुत सारे और भी एडवांटेज देते हैं।
देन आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लीजिए, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसका स्टेट का सर्टिफिकेट ले लीजिए, जैसे हमारे यहाँ यूपी स्टार्टअप पॉलिसी है तो इस यूपी का सर्टिफिकेट ले लीजिए। और अगर इसके साथ कोई लाइसेंसिंग भी रिक्वायर्ड है आपके स्टार्टअप्स के लिए, सो वो लाइसेंसिंग ले लीजिए। जैसे अगर फूड प्रोडक्ट है तो आपको FSSAI लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है उसका वो जिसमें लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, ड्रग लाइसेंस का, ड्रग का रिलेटेड है तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये आपने वो लाइसेंस ले लिया। जब ये सब चीजें हो गई तो अब आप जो है अपने प्रोटोटाइप फंड ला करके प्रोटोटाइप और MVP ये सब बना सकते हैं। जब वो सब चीजें हो जाए तो अगली चीज आती है कि इसको सही तरीके से मार्केट में लेके जाना, जिसको हम लोग गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं। डिटेलिंग यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जनरली जब हमने बिजनेस प्लान बनाया, जब हमने मार्केट स्टडी किया, तब हम सेंस कर रहे थे कि बॉस ये जाएगा कैसे, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि उस समय कि बॉस इसका मेरा बायर कौन है। इनोवेटर, प्योर इनोवेटर जो होता है उसको ये नहीं पता होता इसका बायर कौन है, लेकिन एक इनोवेटर विद एंटरप्रेन्योर विद स्टार्टअप माइंडसेट, उसको ये पता होता है कि खरीदने वाला कौन है, तो वो उसी दिन से इसकी जर्नी प्लान कर लेता है वर्चुअली। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे प्लानिंग होती है पूरी कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, उससे मेरी डिलीवरी कैसे होगी, मेरा प्राइसिंग मॉडल क्या होगा, मैं प्राइसिंग के लिए क्या कोई सब्सिडी दूंगा, मेरा मार्केटिंग चैनल क्या होगा, ऑनलाइन कितने कैसे करूंगा, ऑफलाइन कैसे करूंगा, बहुत सारी चीज। कुछ सर्टेन मिथ एंड ट्रूथ मैंने बताए हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि बॉस लोगों को लगता है कि गो टू मार्केट तब करेंगे जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, सर्विस रेडी हो जाएगी, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। गो टू मार्केट तब जरूर की प्लानिंग तब स्टार्ट कर देते हैं जिस दिन से आप फर्स्ट अपना प्लानिंग करते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है, ये मेरा प्रोडक्ट होगा। सो कुछ चीजें हैं जो मैं स्किप करूंगा और यहाँ से सेशन को क्लोज करूंगा, ओपन करूंगा कि अब आप पूछें, अपने प्रश्न पूछें, और मैं जो भी इंटरेक्शन हम पॉसिबल हो सकता है वो करें यहाँ से। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग सेशन था। तो द सेशन इज नाउ ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। सो आई थिंक चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहे हैं गीतांशु यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन। अच्छा सर, एक मिनट, आई विल आल्सो जस्ट चेक इट, वन सेकंड। तो एक क्वेश्चन आई थिंक ये आपने आंसर कर दिया, व्हाट इज एलिवेटर पिच आया हुआ है। एलिवेटर पिच मैं आंसर कर देता हूँ। एलिवेटर पिच का, एलिवेटर पिच क्या होता है कि एक 30 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड के बीच की पिच होती है। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से कि आप किसी कम्युनिटी में किसी इवेंट में गए हुए और आपको एक, या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार ये बंदा इन्वेस्टर है, और आप उसके साथ लिफ्ट मिल गए, तो वो आपको 30 सेकंड में उस लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचने के बीच में आपको अपना वो स्टेटमेंट देना है, जिससे कि उस बंदे को समझ में आ जाए कि बॉस ये ना कुछ बढ़िया आइडिया बना रहा है, और वो आपकी कम्युनिकेशन की विंडो ओपन कर दे, बोले कि ठीक है कल ऑफिस आ जाओ, मिलते हैं, बात करते हैं। सिर्फ इतना। अब क्या बोलेंगे उस लाइन में? सो लेट्स से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ईवी में कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ उसमें इनोवेशन क्या है, उसको पिच बनाना है कि बॉस यू आर रिवॉल्विंग, यू बिल्ट ए टेक्नोलॉजी विच इज रिवॉल्विंग, गोइंग टू रिवॉल्व 2D 3D नो ईवी सेगमेंट। अब उसके अंदर आपने एक्साइटमेंट दे दिया कि बॉस ये कुछ बना रहा है, इसको समझना पड़ेगा। तो आपको एक कम्युनिकेशन की विंडो ओपन करने के लिए 30 सेकंड में क्या लाइन बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेटर पिच। एक और क्वेश्चन है सर, आफ्टर प्लानिंग फॉर स्टार्टअप हाउ कैन वी नो दैट इट इज द राइट टाइम टू पिच माय स्टार्टअप। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि भाई मैंने स्टार्टअप बना लिया है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सोचना कि आप स्टार्टअप बना रहे हैं और आपने स्टार्टअप बना लेना, मतलब आपका इनोवेशन रेडी हो जाना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, आप सी पूरे जमाने को बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला बॉस। आप सही लोगों तक पहुंचे, उन्हें बताएं कि बॉस मैंने एक इनोवेशन किया हुआ है, उसका ये पर्पस है, वो फीमेल के लिए है, वो उनको हेल्थ केयर में हेल्प करेगा। सो बॉस इसके लिए आप ढूंढो कि मेरे को किसको बताना है और किस पर्पस से बताना है। इंडस्ट्री में ना बहुत कम समय लोगों के पास है बात करने के लिए, और आज की डेट में रोज ऐसी आलतू फालतू पिच आती हैं जिनको अब इन्वेस्टर के पास भेज करके अपना रिलेशन खराब करना होता है। सो हम लोग तो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, हम लोग डेक समझते हैं, पहली लाइन में समझ में आता है कुछ तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ा देते हैं। और एक और चीज बता दूं भाई साहब, ये जो एक सिंगल पेज 1 पेजर डेक होती है, सो 1 पेजर ना बहुत कुछ बोलता है। सो आप जो है ना सबको बताने की जगह आप अपने इनोवेशन पे डीप काम करिए, उसको टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद जब वो टेस्ट सफल हो जाए तब लोगों को बताइए कि बॉस मेरे को ये चाहिए मदद आपसे। आई होप आई आंसर गीतांशु।
एक और क्वेश्चन आया हुआ है. If we choose the name for a company and if the same name is registered in another country, so should we choose that name? आप ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बॉस कभी उस देश में जाना नहीं है तो ले सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, कंपनी नेम दो तरीके से सर्च होता है अगर आप सीए के पास जाएंगे. पहला कि वो ट्रेडमार्क से वो सर्च करते हैं. ट्रेडमार्क डेटाबेस होता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक सेगमेंट है. दूसरा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे सर्च करते हैं. सो अब आपको ये डिसीजन आपको लेना है कि बॉस मेरे को अपनी कंपनी नेम पे यूनिक ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए. क्योंकि कंपनी का लीगल नेम कुछ भी हो सकता है और आपका ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है. जैसे ओला इज नॉट ए कंपनी नेम, इट्स अ ब्रांड नेम, और उसकी कंपनी का नेम कुछ और है. पेटीएम की जो है वो ब्रांड नेम है, उसका कंपनी का नाम है 19 कम्युनिकेशन और 91 कम्युनिकेशन समथिंग समथिंग है. सो लीगल नेम कंपनी का कुछ भी हो सकता है, ब्रांड नेम एक अलग चीज है. So you have to be check your company name in a two ways. Go and do the Google. अगर आपको गूगल में मिल जाता है तो आप मत जाओ. वैसे जिस चीज में पता है कि यार किसी के पास है तो अपना कुछ बनाओ, नया सोचो ना. उसके तरीके हैं. अपनी क्रिएटिविटी को इग्नाइट कैसे करोगे अदरवाइज. तो अगर ये आदत लगी ना कि कॉपी पेस्ट वाली, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे और वो इथिकली माना भी नहीं जाता है. चलो. So that's about it. Thank you so much for joining us today. बहुत informative और बहुत wonderful session था. And we hope to connect with you again in the future. Thank you so much, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Mahin sir. हाय प्रदीप, कैसे? I'm good, sir. गुड. बहुत बढ़िया. अच्छा काम करते रहो. बहुत अच्छी बात है. Thanks, sir. Thank you, sir. Okay. बाय बाय. Bye bye. मैं चालू है सर.